डन. आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये IQAC व डिजिटल पॉझिटिव्ह सेल यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ई कॅम्पस MIS कॉलेज मॅनेजमेंट सिस्टीम या विषयावरती एक दिवसाचं वर्कशॉप आयोजित केलेलं आहे. त्या वर्कशॉपसाठी आयस्टॉर टेक्नॉलॉजी पुणे मिस्टर इनाम नदाब हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी त्यांनी जे काय MIS मध्ये जे मॉड्यूल्स तयार केलेले आहेत, वेगवेगळे ॲडमिन मॉडेल असेल किंवा प्रिन्सिपल मॉडेल असेल, फॅकल्टी मॉडेल असेल, त्याबद्दल ते सगळं मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि मी प्रथम माझ्या कमिटीच्या वतीनं आणि महाविद्यालयाच्या वतीनं जे शिक्षक, माझे प्राध्यापक आणि जे नॉन टीचिंग स्टाफमध्ये हे सगळे शिक्षक कर्मचारी वेबिनारमध्ये सहभागी झालेले आहेत, त्यांचं मी प्रथम स्वागत करतो. आणि या सेमिनारची थोडक्यात जी काय पार्श्वभूमी आहे ती पार्श्वभूमी सांगण्यासाठी मी इथं आमंत्रित करतो IQAC चे कॉर्डिनेटर श्री दसाळ सर यांना. त्यांनी थोडक्यात या वर्कशॉप बद्दल थोडीशी माहिती द्यावी. धन्यवाद सर. सगळ्यांना नमस्कार. वन डे वर्कशॉप ऑर्गनाइज्ड बाय IQAC डिजिटल रिपॉझिटरी सेल विज्ञान महाविद्यालय सांगोला in collaboration with iStar Technologies Pune on eCampus, that is on Management Information System. Chief guest of the inaugural function, Honorable Acting Principal Dr. R.A. Phule, Director of the Institute Dr. Ashok Shinde, Guest of Honor Imam Nadab, Director of iStar Technologies Pune, and he is a young student of our college. Mr. Bhanwase, in arranging this event, all my colleagues from the college, dear friends, ladies and gentlemen, I am immensely happy to welcome you to workshop on Management Information System. At the outset, let me record my gratitude to the directors of Sangola Taluka Shetkari Shikshan Prasarak Mandal and especially to the Honorable President Dr. Ganpatrao Deshmukh for giving me an opportunity to work on installation of management information system in our college and to plan this type of workshop. And thanks to my colleague in all department of college for entrusting responsibility to me. And special thanks to Imam Nadab, Director of ISTAR Pune, for his grateful and fruitful information and efforts in successful information of installation of MIS. Friends, from last 2 years with Rehan Nadab, I am working on MIS, and this is the need of the college and all department of the college, including office administration. This MIS works on some 9 different modules. Firstly, it will work and it will start with online admission of the students, which it runs successfully in academic year 2021 without any single complaint. Now from this year, it is ready to work on academic model like management module, principal module, admin module, HOD module, followed by faculty module and the student module. It will become very interesting when it goes to administration module like management module, account module, clerical module with full of pleasure. This MIS will generate 64 different types of the reports like enrollment list of the student from all the faculties, category wise list of students, detailed fee report of the students, assignments, test, absent and present report of the student, all types of some different feedback report conducted by the department, result analysis of the students, quiz, bridge course conducted by the department. It will help in developing the learning management system of all faculty members. When all faculty members were upload PPTs of all chapters class-wise on their own MIS account and video recording of all the articles, once they may going to upload the syllabus, assignment, test, quiz, video recording and PPT, it will become quite easily accessible
to all students they may enroll in your class. Faculty members can interact with the student and vice versa. Like this, student can take online admission from anywhere and can pay online fee by the help of credit cards, debit cards, or RTGS. Shortly, Imam Nadaf has assured to develop our own application, that is app, on this whole MIS system. In coming year, we were going to propose and to develop library model for more pleasures of all of us. The main goal of this MIS is to give better exposure to all the students, to the principal, to all HODs, faculty members, and clerical staff in view of the management. Dear friends, we have made every possible effort to make you this platform of management information system better and comfortable. Should there be any problem whatsoever, you can directly approach to me. I extend a warm welcome to one and all and wish you very pleasant and fruitful with this digital platform with us. Now I would like to conclude my speech by inviting President of the inaugural session, acting Principal of the College, Honorable Dr. R.A. Phule. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. थँक्यू सर. यानंतर आपल्या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर फुले सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. त्यांनी ते करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. माझ्या महाविद्यालयामध्ये IQAC आणि डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने MIS या सिस्टीम आहे. या सिस्टीमची माहिती देण्यासाठी या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आहेत. कोणते आहेत? श्री इमाम नदाब यांनी आपल्याला याच्या अगोदर चांगल्या प्रकारची माहिती या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याबरोबर आज खरं तर ही प्रक्रिया बऱ्याच लोकांना नवीन आहे, परंतु जर समजून घेतलं तर ही प्रक्रिया खूप सोपी आहे. कारण बऱ्याचशा मग ते क्लिनिकल स्टाफ असेल किंवा प्राध्यापक स्टाफ असेल किंवा विद्यार्थी इतर लोक जेव्हा ताण कमी प्रमाणामध्ये पडतं, त्याचं कारण असं आहे की ती एकदा ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खूपशा काही अडचणी निर्माण होत नाहीत. सरांनी सांगितले की MIS मध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे जे मॉडेल्स आहेत त्या मॉडेल्स बद्दल त्यांनी डिटेल्स माहिती सांगितलेली आहे. सॅम्पल म्हणून परवा आम्ही आपल्या IQAC डिपार्टमेंटला गेलो होतो, त्यावेळेला त्यांनी मला MIS मधलं एक माहिती सांगितली की बाबा मॅनेजमेंट, त्यानंतर विभाग प्रमुख, त्यानंतर त्याची फॅकल्टी अंतर्गत परत विद्यार्थी, त्यानंतर सिलेबस, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन, टाइम टेबल किंवा सगळ्या गोष्टी आपण ऑनलाईन चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी पार पाडू शकतो. खरं तर परिस्थिती अशी आहे की ह्या ज्या नवनवीन ज्या टेक्नॉलॉजी आहेत ह्या टेक्नॉलॉजी माहीत असणं खरं तर गरजेचं आहे. आणि आता ते मिळालेलं आहे. आता पूर्वीसारखं हातानं लिहिणं वगैरे आणि ती सांगणं वगैरे ह्या गोष्टीचा इतिहास जमा झालेला आहे. आणि आता खरं तर ह्या ज्या नवीन टेक्नॉलॉजीज आहे हे आमच्यासारख्या नवीन किंवा लोकांनी त्या गोष्टी अडॅप्ट करणं गरजेचं आहे. खरं तर ते आमच्या दृष्टिकोनातून ते नवीन आहे, परंतु ते माहिती करून गेल्याशिवाय पर्याय नाही. आणि आपण सर्वांनी आजच्या या कार्यशाळेमधून निश्चित आपल्याला चांगल्या प्रकारची माहिती मिळेल अशा प्रकारची मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि पुढील कार्यवाहीसाठी मी भानुष सरांना विनंती करतो. या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर या कार्यक्रमाची जी काय मेन थीम आहे, आपण ज्याच्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केला आहे त्याच्यावरती बोलण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय मिस्टर इमाम नदाब, आयस्टॉर टेक्नॉलॉजी पुणे. तर त्यांनी आमच्या महाविद्यालयातील जे प्राध्यापक आणि कर्मचारी आहेत त्यांना मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थैंक यू फुले सर. सर स्टार्ट करेंगे? 35 हो गए. स्टार्ट करो. चलो ठीक है.
ये शायद मेरा प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा? दिख रहा है। ओके। आप आपके लिए जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें बात कर सकते हैं आप। मराठी में भी करो, हिंदी में भी करो, सभी को चलेगा चलेगा, ध्यान में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमारे मॉडल में जो है, हमारी इंटेंशन इतना है कि हर एक स्टूडेंट कहीं से भी एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ साथ में जो भी स्टूडेंट का रेगुलर हो एकेडमिक डिटेल्स होगा या एकेडमिक फैसिलिटीज होके, तो उस भी कंप्यूटराइज होना चाहिए। तो हमारा पूरा इंटेंशन इतना ही था। और एक हमारा इंटेंशन ये था कि हर एक मॉड्यूल उनके उनके फ्यूचर के हिसाब से रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल एडमिन, जो एडमिन का वर्क होता है ना, तो उसके लिए अलग से मॉडल बना के वो जो किसी का भी बिना परमिशन लेके तो एडमिन का वर्क एडमिन कर सकता है। वैसे ही मैनेजमेंट के अ, उसका जो काम है मैनेजमेंट का, तो वो खुद मैनेजमेंट किसी का बिना परमिशन के उसका रोल वो ले सकता है। उसके साथ में प्रिंसिपल वैसा ही, उसके साथ में एचओडी, उसके साथ में अकाउंट डिपार्टमेंट, उसके साथ में क्लर्क डिपार्टमेंट, उसके साथ में फैकल्टी, उसके साथ में स्टूडेंट्स। तो इसका ये जो सिस्टम है इसका हायरार्की ऐसा है कि जो मेन मॉड्यूल है वो एडमिन मॉडल रहेगा, उसके पास में उसके बाद में जो सब मॉडल रहेगा वो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट मॉडल रहेगा। उसके बाद में एचओडी मॉडल रहेगा। ये एचओडी मॉडल डिपेंड रहेगा कि एडमिन मॉडल पर, क्योंकि एडमिन ही एचओडी क्रिएट कर रहा, एडमिन ही प्रिंसिपल क्रिएट कर रहा और एडमिन ही मैनेजमेंट को क्रिएट कर रहा। उसके साथ में जो सब मॉडल्स आते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट आता है, उसके साथ में क्लर्क्स आते हैं, उसके साथ में फैकल्टी आता है, उसके साथ में स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो हम एक एक बनाए मॉडल्स एक्सप्लेन करता जाता हूँ मैं कि एक सिंगल सिंगल एंट्री मार के डेमो देखता हूँ तो क्या है इस पे। फॉर एग्जांपल हम पहले स्टार्ट करेंगे एडमिन मॉडल से। साथ में हर एक मॉडल के आगे एक एक लिंक्स है कि लॉगिन बोल के, जो जो हमारा रोल है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारा मॉड्यूल है, तो उसके सामने हम क्लिक करना है। सपोज मैं एडमिन मॉडल यूज करता हूँ कि एडमिन मॉडल के सामने जो लॉगिन बटन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक किया तो मुझे एक स्क्रीन मिला कि एडमिन लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। उसके साथ में हर एक को मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी प्रोवाइड किया। उसके बाद में डिफॉल्ट एडमिन जो मिलता है वो डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। जैसे फर्स्ट लॉगिन होगा तो उसको यूजर ने पासवर्ड चेंज करने के लिए या प्रोफाइल चेंज करने के लिए अथॉरिटी मिल जाएगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड आएगा कि यहाँ पे जो लॉगिन हुआ है एडमिन उसका नाम दिखेगा, उस साथ में उसका प्रोफाइल दिखेगा। साथ में ये ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट मॉडल है, उसके अंदर में एचओडी ऐड कर सकते हैं, कुछ नोटिस हो तो नोटिस ऐड कर सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट ऐड कर सकते हैं और प्रिंसिपल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने यहाँ पे कि क्लास कॉन्फ़िगरेशन हमारे कौन से डिपार्टमेंट में कितने क्लासेस है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। साथ में स्टूडेंट डिटेल्स को देखना है तो स्टूडेंट्स के अंदर ऑल स्टूडेंट डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट देख सकते हैं क्लास वाइज। उसके बाद में एम आई एस रिपोर्ट बोले के अलग से ही उस पर मेनू है, उस पर हम बाय क्लास वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, फैकल्टी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। ये जो डैशबोर्ड है हमारा, ये प्रेजेंट करता है कि हमारे कॉलेज में कितने एडमिशन्स हो गए फिलहाल के। कभी यहाँ पे दिखा रहा एक दो ऐसा मिसमैच हो जाता है, क्योंकि कोई तो अर्धा फॉर्म भर के गया वहाँ पे ऐसा होता है, एक दो मिसमैच हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा तो नहीं होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल एडमिशन बोल के हमें एक यहाँ पे व्यू मिलेगा, उस पे कितना अभी 1658 लोग यहाँ पे एडमिशन लिए हैं। और दूसरा जो कैटेगरी है वेरीफाइड कैटेगरी है। वेरीफाइड कैटेगरी का मीनिंग ये है कि जितने स्टूडेंट्स कॉलेज में बाहर से फॉर्म भर के कॉलेज में एडमिट होके पैसे भर के जितने लोग रेडी हुए हैं एडमिट कॉलेज में ज्वाइन होने के लिए, तो यहाँ पे हमें वो डिजिट दिखा है कि 1633 लोग अभी कॉलेज में एडमिशन लेके फी भी भर के तभी सक्सेसफुल कॉलेज में ज्वाइन हुए हैं। अभी जो 24 जो ये डिजिट दिखाता है, ये डिजिट ये दिखाता है कि जितने लोग फी ऑनलाइन एडमिशन भरे हैं लेकिन फी भरे नहीं है, लेकिन वो कॉलेज आया नहीं है, जस्ट वो एप्लीकेशन भरा है ऑनलाइन, साथ में वो कॉलेज को
डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या फी भरने के लिए आए नहीं है, तो ऐसा डिजिट काउंट करने के लिए ये पेंडिंग बोल के कैटेगरी बनाया है, तो उस पर ये डिजिट आपको दिखाएगा। अगर भविष्य में ऐसा कुछ और कैटेगरी आया, फॉर एग्जाम्पल रिजेक्ट, कि कितने जन कितने लोग रिजेक्ट किए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉड्यूल एक बना के रखा हूँ, तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट तो हम ले लेंगे। साथ में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट डिटेल्स बोल के एक टैब है, एक लिंक है। साथ में यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि वेरीफाइड के साथ यहाँ पे पेंडिंग में हम देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट वेरीफाइड हैं और कितने पेंडिंग है, यहाँ पे हमें दिखाता है। अगर हम फिल्टर करके देखना है तो हम कंट्रोल F करके देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा से पूरा वेब बेस्ड है, पेंडिंग, ठीक है। अभी हमारे पास आप देखते हैं कि 25 डिजिट दिखा रहा है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जो वेरीफाइड है हम भी उसको कंट्रोल F करके देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, ये कहाँ कौन सा पोजीशन में हूँ मैं, और ये दिखाता है कि कितने काउंट्स हैं। तो ऐसा पूरा सा पूरा मैनुअल होता है कि ये सिस्टम में हम पूरा कुछ एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा जो एंट्री है वो स्टूडेंट खुद कर रहा, और वह ऐसा एंट्री कर रहा है कि मोबाइल से भी एडमिशन ले सकता है, और कहीं तो बाहर से अगर नेट कैफे गया ऐसा है तो वो वहाँ पे ले सकता है, और कहीं घर बैठे के एडमिशन ले सकता है, घर बैठे वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो ढेर सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर के सबमिट कर सकता है, कि हमें सिर्फ क्या करना है, जस्ट स्टूडेंट कॉलेज पे आने के बाद उसका डिटेल चेक करना है, और उसका डिटेल चेक करके हमने कॉलेज पे हर जितने स्टूडेंट्स हैं हर एक आईडी असाइन किया है, तो आईडी हम नाम रखें कि VPRN। VPRN का मतलब ये होता है कि विज्ञान महाविद्यालय सांगोला परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे हमारा ZPRN होता है, ZPRN जो होता है वो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, और VPRN जो है हमारा सिर्फ विज्ञान महाविद्यालय सांगोला के लिए है, ठीक है। और उसके साथ में ये जो VPRN है, ये VPRN यूनिक है, और वो जितने दिन कॉलेज में रहेगा उतने दिन उसके लिए अलोकेशन रहेगा, और जितने दिन वो कॉलेज जब वो कॉलेज छोड़कर जाएगा, यानी कि आफ्टर उसका कोर्स कंप्लीट, तो वहां तक ये आईडी चलेगा, उसके बाद में ये आईडी सस्पेंड हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर स्टूडेंट आ गया कॉलेज में फिर से लॉगिन किया तो उसको लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ये मॉडल हम ऑनलाइन में बनाए थे, वो मॉडल जो था वो सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए था। ये जो मॉडल है ये कैंपस मैनेजमेंट के लिए है। ये जो आप सॉफ्टवेयर अभी देख रहे हो ई कैंपस, आप लिंक देख सकते हो, ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ आपको कैंपस में इतना ही ओपन होगा। अगर आप कैंपस छोड़ के कहीं बाहर गए तो आपको कैंपस छोड़ के बाहर जाने के बाद ये आपको सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। ये पूरा सा पूरा लैंड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपको कुछ यूज करना है तो आप लैन पे आके यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लैन कनेक्ट नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में हम एक एक मेनू देखते जाएंगे। उसके बाद अगर लॉगआउट करना है तो आप लॉग आउट भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में अगर ये हमें थीम अच्छा नहीं लगा, सपोज ब्लू कलर का, तो हम इस पर क्लिक करके हमें जो चाहिए हम थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम रिप्रेस किए तो भी आपको ये अपेयर होगा। जैसे हमें कस्टमाइज है कि हमें जो पसंद है हम हमारे पसंद के हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी मुझे जो पसंद है मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको क्लोज कर लेता हूँ। साथ में पहला जो ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑप्शन है। डिपार्टमेंट ऑप्शन के अंदर ऐड एचओडी बोल के है, ये ऐड एचओडी पे क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है यहाँ पे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। जो भी मेरा डिपार्टमेंट है मैं ये डिपार्टमेंट चॉइस कर लगता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट जो है अभी फिजिक्स कर लेता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट फिजिक्स। उसके बाद में फिजिक्स डिपार्टमेंट का एचओडी में डाल देता हूँ, ठीक है, एचओडी। जस्ट टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं फिजिक्स। उसके साथ में जो एचओडी के एजुकेशन है मैं डाल देता हूँ MSc। उसके बाद में जस्ट एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, जो एड्रेस है मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद में एचओडी का जो एचओडी का जो मोबाइल नंबर है वो मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ।
उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइन, जब कॉलेज पे ज्वाइन हुआ है वो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उसके बाद में हमने यहाँ पे और एक ऐड करके लिए कि आधार नंबर, ये भी यूनिक होगा, हमें बहुत सारे हेल्प करेगा कि अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हुआ तो भी हम आधार नंबर से यूनिक एज ए यूनिक बोल के हम यहाँ पे ले सकते हैं इसको, कि ये जो आधार नंबर है हर एक के अलग अलग होगा, ये यूनिक नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं पे आधार नंबर डाल देता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक किया तो मुझे एक मैसेज दिख रहा है कि एचओडी एडेड। अगर आपको ये मैसेज दिखा तो आप कंफर्म कर लो कि एचओडी ऐड हो गया। साथ साथ में आप ऑन द स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो अभी ऐड के एचओडी है वो ऐड हो गए हैं। उसके साथ में हम उनके डिटेल्स भी देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट भी देख सकते हैं। साथ में अगर इस पर कुछ चेंजेस करना है तो इतना इजी बनाया हमने कि जैसे इस पर क्लिक किए हमने का डायरेक्टली यहाँ पे जो हम एंट्री किए थे वो डिटेल्स अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं चेंजेस करके अपडेट कर लेता हूँ कि ऑन द स्पॉट देख सकते हैं कि ये जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये पूरा सा पूरा अपडेट हो गया। तो और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में हमें जो चाहिए, अगर इसको डिलीट करना है डिपार्टमेंट, अगर एचओडी कोई उसके एचओडी कॉलेज छोड़ के चले गए या उनका रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद में उनको हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं कि हमारा पूरा सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी डिलीट क्यूरी आपको नहीं दिखेगा। आपको इतना दिखेगा कि बस उसको हम डिसेबल कर सकते हैं, इसके अलावा हम पूरा सॉफ्टवेयर से डेटा उड़ा नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो इसका जो स्टेटस है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अभी ये जो ऐड किया मैंने इसी को हम अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे, उसके साथ में ये जो अकाउंट है इसको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीटेड बोल के आ गया। तो आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो कि यहाँ पे डिलीटेड बोल के दिखा रहा है। साथ में मैंने क्या करता हूँ, ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट के कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, इसके साथ में मैं मैनेजमेंट को भी ऐड कर सकता हूँ। ये सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा था उसके साथ में यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट दिखाई ऐसा सो वैसा सेम डिटेल्स हम भरना है। मैनेजमेंट के लिए भी जैसे नेम एंट्री करना है, एजुकेशन एंट्री करना है, एड्रेस एंट्री करना है, मोबाइल नंबर एंट्री करना है, डेट ऑफ बर्थ एंट्री करना है, जेंडर एंट्री करना है और आधार नंबर एंट्री करना है। साथ में सेव करने के बाद आपको जैसा वहाँ पे होगा सेम कंडीशन में आपको ऐसा यहाँ पे लिस्टेड होगा कि जैसा मैनेजमेंट मॉडल में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते, जस्ट उसको एडिट कर सकते हैं। के साथ साथ में आप प्रिंसिपल मॉडल भी देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस यहाँ पे नाम, एजुकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार नंबर जैसे आप एंट्री करके सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लिस्ट में नीचे अपेयर होगा। आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो, जस्ट आप डिलीट नहीं कर सकते। कि हमें ये पता चला कि एक कॉलेज के अंदर एक ही प्रिंसिपल हो सकता है। ये जस्ट ये जो ऐड कर रहे हैं ये एडमिन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उनका सब पता चलेगा कितने ऐड करना है कितना ऐड नहीं करना है, कि हम इसलिए यहाँ पे अथॉरिटी नहीं रखे, लिमिट नहीं रखे कि ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ नोटिस है तो भी यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। नोटिस ऐड करने के बाद ये जो नोटिस है ये डायरेक्टली फैकल्टी को जाएगा, साथ साथ में डिपार्टमेंट को जाएगा, साथ साथ में स्टूडेंट को जाएगा। अगर हमने यही कॉलेज कैंपस में अगर डिस्प्ले बोर्ड बना के हम इसको यूजिंग एपीआईज यूज करके हम डिस्प्ले किए तो अभी हमारा कैंपस जो है ना वो तो डिजिटल कैंपस भी बनेगा, क्योंकि ये जो क्या नोटिस है ये नोटिस बोर्ड पे भी अवेलेबल होगा। जो इतने मॉडल्स यहाँ पे मैंने दिया हूँ ये डिपार्टमेंट एडमिन कर सकते हैं। साथ साथ में कॉन्फ़िगरेशन बोल के मैं ऑप्शन लिया यहाँ पे, जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूँगा तो मुझे इतना स्क्रीन यहाँ पे दिखेगा कि कॉन्फ़िगरेशन में क्लास कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ। जो मैंने सिर्फ यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया को मुझे यहाँ पे पूरा सा पूरा क्लास दिखेंगे। तो मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा कि बीएससी सेलेक्ट कर लूँगा, उसके साथ में कौन सा है गारंटेबल नॉन गारंटेबल है, तो बिल्कुल गारंटेबल है, उसको सेलेक्ट करके मैं सेव पे क्लिक करूँगा, ये क्लास ऐड हो गया। इसके साथ साथ में मुझे यहाँ पे एडिट करना है तो एडिट कर सकता हूँ, मुझे डिलीट करना है तो मैं क्लास को भी डिलीट कर सकता हूँ। तो साथ साथ में फिर से मैं और एक ऐड कर लूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स।
सेकेंड ईयर, ग्रांट टेबल, सेव। तो और सर इसमें 2-3 डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा ऐड आ गए हैं, फॉर एग्जांपल एनसीसी, तो वो भी आपको 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। साथ साथ में एडमिन मॉडल में आप यहाँ पे स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट बोल के यहाँ पे ऑप्शन है कि ऑल स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे मैं कैटेगरी किया हूँ कि क्या कैटेगरी किए हैं कि कौन से क्लास के स्टूडेंट चाहिए उतने हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फिजिक्स का, सॉरी बीएससी फर्स्ट का स्टूडेंट चाहिए, जैसे मैं बीएससी फर्स्ट सेलेक्ट करके सर्च किया तो मुझे यहाँ पे सिर्फ बीएससी फर्स्ट का ही स्टूडेंट दिख रहे हैं और वो भी वेरीफाइड स्टूडेंट इतना ही दिख रहे हैं। हम यहाँ पे नाम वगैरह देख सकते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स, उसके साथ में रिपोर्ट देख सकते हैं कि क्लास वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, सेम वही हो रहा है यहाँ पे। और जैसे एमआईएस रिपोर्ट भी देखता हूँ कि जैसे मैं बाय क्लास पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे बीएससी फर्स्ट चॉइस किया, सर्च पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे अपेयर हो रहा कि कौन सा स्टूडेंट है और उसका आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका कोर्स क्या है और वो कौन सा सब्जेक्ट कंपल्सरी चॉइस किया है, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल चॉइस किया है। तो पूरा से पूरा एक ही क्लिक में हम पूरा उसका डिटेल देख सकते हैं। और ये जो डिटेल आपको दिख रहे हैं ये आप यहाँ पे मैन्युअल एंट्री नहीं किए, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एंट्री किया है, वो भी बाहर से एंट्री किया है। इस जैसे यहाँ पे क्लास होने के बाद यहाँ पे बाय फैकल्टी पे ऑप्शन देख सकते हैं। बाय फैकल्टी के अंदर की 3 फैकल्टी बनाए मैंने, आर्ट्स, साइंस और कंप्यूटर की। जैसे मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल सर्च किया, जो जितने कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट जितने स्टूडेंट्स हैं ना तो पूरा सा पूरा स्टूडेंट्स यहाँ पे अपेयर हो गए। हम चाहे तो इसको एक्सेल में भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल क्लिक करने का तो हमें डायरेक्टली एक्सपोर्ट मिल जाएगा एक्सेल में। इसको ओपन करूँगा मैं आपको दिखाने के लिए। मेरा एक्सेल फाइल ओपन हो गया, इस पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो को बिल्कुल भी यहाँ पे जो दिख रहा था आपको यही यहाँ पे दिखेगा। साथ साथ में आपको क्लास भी दिखेंगे। अगर आप चाहिए तो इसको फिल्टर लगा के आपको जो चाहिए वो फिल्टर करके आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे बीए सेकंड का देखना है तो मैं सिर्फ बीए सेकंड का इतना ही देख सकता हूँ। क्लोज कर लेंगे। ये हो गया बाय क्लास। बाय कैटेगरी ये भी हमें इतना इम्पोर्टेंट होता है कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप वगैरह एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए भी हेल्प होता है कि कौन सा कैटेगरी के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि एससी कैटेगरी के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, जस्ट मैं एससी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा और सर्च करूंगा, ये देखिए कितना क्या ऑन द स्पॉट आपको पूरा सा पूरा एससी कैटेगरी के जितने स्टूडेंट्स हैं आपको यहाँ पे लिस्ट आउट हो गए। उसके साथ में उसका क्लास हो गया, साथ में उसके डेट ऑफ बर्थ हो गए। हमें और भी इसको मैन्युअली फिल्टर करना है तो हम फिर से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में और इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। ये हो गया कैटेगरी वाइज। ऐसे पेइंग भी है, जैसे मैं पेइंग पे सर्च करूंगा जितने मेरे स्कूल के कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट पेइंग वाले हैं यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। इसके साथ साथ में ऐसा एडमिन मॉडल यहाँ पे रेडी है। साथ में मैं क्या करूँगा, अभी इसको लॉग आउट करूँगा, फिर से मैंने मेन मॉड्यूल के लिस्ट के अंदर पहुँच गया हूँ। इसके साथ साथ में मैनेजमेंट भी मेरे पास है। जैसे मैंने मैनेजमेंट लॉगिन को क्लिक किया तो मैनेजमेंट के यूज़र नेम पासवर्ड डाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट मॉडल भी हो गए। तो सेम टू सेम कंडीशन में उनको भी वही दिखेगा जो एडमिन को दिख रहा था। आप देख सकते हो रिपोर्ट में वही दिख रहा, क्लास वाइज एमआईएस रिपोर्ट भी उनको दिख रहे हैं, मैनेजमेंट पे ये भी दिख रहे हैं। बस इतना कैटेगरी यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा कि ये होगा कि कौन क्या देख रहा,
क्योंकि हर एक का यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास है, हर एक के पास यूनिक आईडी है। फॉर एग्जांपल आधार नंबर, फॉर एग्जांपल उनको हमें एक आईडी बना कर दिए हैं। जो भी ट्रेस कर रहा, जो भी यूज कर रहा सॉफ्टवेयर, उसका सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल भी ट्रेस कर लेगा। उसका लॉग फाइल सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा, कौन कितने बजे लॉगिन हुआ, कौन कितने बजे लॉग आउट हुआ, कौन से स्टूडेंट कितने बजे लॉगिन हुआ, कौन से स्टूडेंट कितने बजे लॉग आउट हुआ। उस साथ साथ में कौन से स्टूडेंट कितने दिन लॉगिन किया है, कितने दिन लॉग आउट किया है, सॉरी यूज नहीं किया। कि हमें इससे ये एनालिसिस होगा कि सॉफ्टवेयर कॉलेज में यूज हो रहा है नहीं यूज हो रहा, ये हमें मैनेजमेंट को पूरा दिखाई देता है पूरा सा पूरा। तो साथ साथ में इसको भी लॉग आउट कर लेता हूँ मैं। सेम से सेम प्रिंसिपल पे ऐसा ही है। साथ में मैंने क्या कर लेता हूँ, एक एचओडी मॉडल लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैंने एचओडी लॉगिन पे क्लिक किया तो मुझे एचओडी का डिटेल मांग रहा, तो मैंने एचओडी डिटेल डाल देता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया था हमारा डेटाबेस में आ गया है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने एचओडी लॉगिन ओपन किया तो डैशबोर्ड पे कुछ टेस्टिंग के लिए डाल दिया मैंने। आप इसको छोड़ दो, जो भी है, जो भी एडमिन अपलोड किया है, जो भी मैनेजमेंट अपलोड किया है, या जो भी प्रिंसिपल सर ने अपलोड किए हैं, तो पूरा सा पूरा मैंने एचओडी पैनल पे यहाँ पे नोटिस में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आएगा सेम टू सेम स्टूडेंट को भी आ जाएगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचओडी मॉडल के अंदर कुछ 4-5 ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो रहा। पहला जो ऑप्शन है फैकल्टी है, साथ में दूसरा ऑप्शन जो है फैकल्टी के अंदर ऐड फैकल्टी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो जो भी मेन मॉडल्स थे, मतलब एडमिन मॉडल्स थे, एडमिन मॉडल जो थे वो मॉडल क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे थे डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, और वो जो डिपार्टमेंट डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन फैकल्टी के साथ वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो साथ फैकल्टी के साथ वो सिर्फ और सिर्फ जो मेन मॉडल्स थे वो इनडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं। उसके साथ में हम देख सकते हैं जो भी एचओडी है, एचओडी मॉडल जो है उसके साथ वो एचओडी मॉडल डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा फैकल्टी मॉडल से। जैसे मैंने यहाँ पे फैकल्टी ऐड फैकल्टी पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा कि फैकल्टी डिटेल बहुत ढेर सारे फैकल्टी डिटेल्स होते हैं कि उसमें सिर्फ मैंने लिया हूँ कि फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल। जैसे मैंने फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल यहाँ पे एंट्री करके हर एक फैकल्टी का सेव किया, उनका अकाउंट रजिस्टर होगा, बट उनका पूरा सा पूरा प्रोफाइल जो है पेंडिंग में पड़ेगा। जब तक वो फैकल्टी खुद लॉगिन होके उसका जो पूरा प्रोफाइल है वो नहीं भर के लेगा, तो तब तक ये जो स्टेटस है पेंडिंग में रहेगा। यहाँ पे जो फैकल्टी को यहाँ पे फैकल्टी अगर छोड़ के गया कॉलेज छोड़ के, कि यहाँ पे एचओडी मॉडल पे यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा अपेयर हो रहा। जैसे पे क्लिक किया तो एक्टिव हो गया, जैसे इस पे क्लिक किया तो डीएक्टिव हो गया। हम विद इन ए सेकेंड में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे पेंडिंग पड़ा है, इसका ये ऐसा समझना है कि अगर फैकल्टी ने पूरा प्रोफाइल भर दिया उसका खुद का, तो ये जो स्टेटस है ये पेंडिंग जो है ये कंप्लीटेड दिखेगा और ग्रीन हो जाएगा। अभी जो है पेंडिंग है और ये ग्रीन नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, और एक फैकल्टी ऐड करेंगे आपके सामने। बस मेरा नाम डाल रहा हूँ मैं, मेरा मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, मेरा ईमेल डाल रहा हूँ, अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, जस्ट हो गया। हम इसको डीएक्टिव भी कर सकता हूँ, एक्टिव भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने डीएक्टिव पे क्लिक किया तो पूरा से पूरा एडमिन मॉडल क्या होगा, सॉरी फैकल्टी मॉडल क्या होगा, वो लॉगिन से हट जाएगा। उसका डिटेल्स रहेगा लेकिन वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो डीएक्टिव है। उसका अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हो जाएगा। अब फिर से अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था फिर से एक्टिव करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर सकते हो, वो आपको एक्टिव मोड हो जाएगा और फैकल्टी का अकाउंट जो है वो लॉगिन को हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो फिर से हम एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे अपेयर हो जाता है कि मैंने चेंजेस कर रहे थे यहाँ पे और अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑन द स्पॉट अपडेट हो गया और लिस्ट आउट भी हो गया। मैंने क्या करता हूँ, अभी फैकल्टी होने के बाद में एकेडमिक डिटेल सेटिंग करने के लिए ये सिर्फ वन टाइम कर सकते हैं, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एकेडमिक के अंदर ऐड सेमेस्टर पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लॉगिन किया हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट।
जैसे मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट लॉगिन किया तो मुझे हर एक क्लास नहीं दिख रहा है, क्योंकि एडमिन मॉडल आप हमें जो पहले देख रहे थे, आप वहाँ पे नोटिस किए थे कि कितने क्लास है ना, सब क्लास वहाँ पे दिख रहे थे। लेकिन जैसे मैंने डिपार्टमेंट लॉगिन किया, डिपार्टमेंट लॉगिन करने के बाद एडमिन जितना अलोकेशन किया है डिपार्टमेंट के लिए, मुझे यहाँ पे इतना ही क्लासेस दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के लिए BSc फर्स्ट चॉइस करता हूँ, उसके साथ में मैंने सेम 1 कर लेता हूँ और सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कि पूरा सा पूरा यहाँ पे लिस्ट आउट हो गया है। इसको भी चेंजेस करना है तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ, या नहीं तो इसको छोड़ देता हूँ। फिर से मैंने यहाँ क्या करता हूँ, BSc फर्स्ट में ही सेमेस्टर सेकेंड में है वो भी ऐड कर लेता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। उसके साथ में मैंने फिर से सेमेस्टर सेकेंड में थर्ड भी है, थर्ड भी ऐड कर लेता हूँ। उसके साथ में सेमेस्टर सेकेंड में फोर्थ भी है, सॉरी BSc सेकेंड में फोर्थ भी है, मैंने फोर्थ भी ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जितने जो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया वो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिस्ट आउट हो रहा है। तो हम इसको सेम टू सेम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, जो नहीं है जो है उसको एक्टिव कर सकते हैं। जो जितने भी चेंजेस करना है यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे मैंने ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो साथ में कौन सा क्लास के अंदर कौन सा सेमेस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने BSc फर्स्ट चॉइस किया, मुझे सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेम दिख रहे हैं। जैसे मैं BSc सेकंड चॉइस किया, मुझे थर्ड सेम और फोर्थ सेम दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं BSc फर्स्ट चॉइस कर सकता हूँ, सेम फर्स्ट चॉइस करता हूँ। को सब्जेक्ट है टेस्ट 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड है 0011, मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सब्जेक्ट भी आ गया, उसका कोड भी आ गया। ये जो सब्जेक्ट कोड है हमें ढंग से ऐड करना है, हमें ध्यान दे के ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट कोड है ये स्टूडेंट मॉडल पे जाएगा, और किसी किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरते वक्त उनको सब्जेक्ट कोड नहीं पता चलेगा, को वो डायरेक्ट लॉग इन होकर वहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हैं। तो साथ में मैंने और एक क्लास ऐड कर लेता हूँ, क्लास के अंदर और एक सब्जेक्ट ऐड करता हूँ। सेव ऐड करा पे आप देख सकते हो लिस्ट आउट हो रहा। ये हो गया सब्जेक्ट का सेटिंग। ये सिर्फ हमें वन टाइम करना है। जैसे सॉफ्टवेयर लिया मैंने दिया आपको, मैं इंस्टॉल किया, तो वन टाइम आपको यहाँ पे एंट्री करके छोड़ देना है। आपको बार बार हर ईयर करना जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे मेन और एक ऑप्शन देख रहा हूँ कि टीचर कॉन्फ़िगरेशन बोल के दिख रहा। जैसे मैंने टीचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया तो मुझे जितने भी फैकल्टी है मेरे डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे मुझे अपेयर हो जाएगा। मैं नाम पे सेलेक्ट करता हूँ अभी जो ऐड किया था, और गेट पे क्लिक करता हूँ कि मुझे नाम दिख रहा जिसके गेट किया था, उसके साथ में मुझे फैकल्टी ID भी दिख रहा कि मैंने इसका मीनिंग जो है आपको बताता हूँ कि टीचर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। टीचर कॉन्फ़िगरेशन ये है कि हम कौन से टीचर को कौन सा क्लास को असाइन कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैंने ये जो फैकल्टी मैंने फैकल्टी चॉइस किया और फैकल्टी ID भी यहाँ पे ऑटोमेटिक गेट आ गया, क्योंकि आफ्टर क्लिक ऑन गेट बटन। साथ में यहाँ पे मैं क्लास पे देखा, क्लास पे मुझे भी यहाँ पे फिर से मुझे क्लास दिख रहे हैं, चॉइस किया। साथ में मुझे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, BSc सेकेंड चॉइस किया तो मुझे सब्जेक्ट दिख रहा है, टेस्ट 1 सब्जेक्ट किया, ऐड पे क्लिक किया कि इसका मतलब क्लास 1 में ये सब्जेक्ट इसको सिखाना है। ऐड पे क्लिक किया तो मैपिंग ऐड हो गया, ठीक है। तो एक टीचर को कितने भी हम सब्जेक्ट आसान कर सकते हैं, लेकिन सेम सब्जेक्ट नहीं कर सकते। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएक्टिव भी कर सकते हैं, एक्टिव भी कर सकते हैं, इसको DLD भी कर सकते हैं। ये हो गया टीचर्स कॉन्फ़िगरेशन। हमें एचओडी मॉडल के अंदर मैंने जो मेन मेनू है स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने स्टूडेंट को क्लिक किया। स्टूडेंट को क्लिक करने के बाद मुझे जो जितने ये मॉडल के लिए आसान हुए थे, मतलब जितने ये डिपार्टमेंट के लिए क्लासेस आसान हुए थे, उतने मुझे यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं। जो भी मुझे क्लास चाहिए वो चॉइस करके मैं सर्च पे क्लिक किया, तो उसका अंडर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे स्टूडेंट का लिस्ट आउट पूरा सा पूरा यहाँ पे हो गया। अगर फिर से आपको कुछ अलग स्टूडेंट का सर्च करना है, आप कंट्रोल ऐप कर सकते हैं और आप सर्च कर सकते हैं कि जितने 12 स्टूडेंट्स हैं सब 12 स्टूडेंट यहाँ पे अपेयर हो गए।
साथ में एक हो स्टूडेंट, उसके साथ में रिपोर्ट हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट के अंदर क्लास रिपोर्ट है, मेरे अंदर जो तो कितने क्लासेस आते हैं मेरा डिपार्टमेंट के अंदर, मैं चॉइस कर सकता हूँ और उसको यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो साथ में फैकल्टी फीडबैक भी है, तो वो आपको फैकल्टी फीडबैक में ऐसा दिखेगा, वो हम भी यहाँ बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसका और इसका रिलेशन कुछ नहीं है। ये जो फैकल्टी मॉडल है कुछ अलग ही है, और एम आई से वो कुछ अलग ही है। बस आपको एम आई के अंदर फैकल्टी फीडबैक इतना दिखाता है कि कौन सा सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टीचर ने क्या फीडबैक लिया है। ये जो फीडबैक है डायरेक्टली स्टूडेंट की तरफ से लेते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा कौन से फैकल्टी कितना % लिया है, उसका स्टेटस क्या है। ये हो गया रिपोर्ट। उसके साथ साथ में यहाँ पे एमआरएस रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसे मैंने एमआरएस रिपोर्ट पे क्लिक किया बाय क्लास, हमें जो चाहिए क्लास चॉइस करके हमें सर्च कर सकते हैं, और उसको यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट आ गया, जो अपना सब्जेक्ट है मुझे वो भी यहाँ पे अपेयर हो रहा। मुझे चाहे तो मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ एक्सेल शीट में। टेक्निकल इशू रहेगा, ये हो जाएगा। इसे बाय क्लास हो गया। तो ऐसा मैंने क्या किया यहाँ पे एचयूडी मॉडल आपको एक्सप्लेन किया। इसके साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो फैकल्टी के अंदर ये जो नया फैकल्टी है इसी के साथ हम काम किए। अभी भी इसका स्टेटस जो है ये पेंडिंग में है। हम इसको स्टेटस जो है ना पेंडिंग जो है हम इसको एक्टिव करके देखेंगे। अभी नेक्स्ट मॉडल जो आता है, नेक्स्ट मॉडल जो आता है वो आता है फैकल्टी मॉडल। जैसे मैंने फैकल्टी मॉडल पे सामने क्लिक किया, मैंने उठाता हूँ एक फैकल्टी का डिटेल्स। पासवर्ड लॉगिन किया। जैसे मैंने लॉगिन किया तो मेरा जो है फैकल्टी का लॉगिन ओपन हो गया, और हम देख सकते हो कि यहाँ पे जो लॉगिन हो उसका नाम भी आ गया फैकल्टी का। जैसे मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो मुझे मेरा प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा। अभी मेरा वीपीआर में दिख रहा, मेरा डिपार्टमेंट का आईडी दिख रहा, मेरा नाम यहाँ पे अपेयर हो गया, मेरा मोबाइल नंबर अपेयर हो गया, मेरा ईमेल अपेयर हो गया, मेरा जेंडर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये अकाउंट रजिस्ट्रेशन के वक्त किया हुआ डिटेल्स है। मैंने पूरा सा पूरा वहाँ पे फॉर्म भर लेता हूँ, मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्वालिफिकेशन एमसीए कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा डेटा बर्थ डाल देता हूँ। साथ में मैंने मेरा ज्वाइनिंग डेट डाल देता हूँ, मैरिटल स्टेटस, फादर का नेम डाल देता हूँ, नंबर ऑफ सॉरी इन मंथ्स कि मुझे कितने एक्सपीरियंस है या फैकल्टी एक्सपीरियंस के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। या आप एडिट भी कर सकते हो बार बार, इन मंथ्स के अंदर आपको डालना है, ईयर के अंदर नहीं है। अभी आपको यहाँ पे नोटिस कर लेना कि मैंने लिखा है यहाँ पे मंथ्स, ये मुझे है एक 24 मंथ्स। फैकल्टी करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, सांगोला। मेरा पासवर्ड है, जो भी आप मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो प्रोफाइल डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड, जैसे ओके पे क्लिक किया तो अपडेट हो रहा। तो साथ साथ में मैंने मेरा जो प्रोफाइल था वो प्रोफाइल पे भी मैंने पूरा सा पूरा फॉर्म भरना फिलअप करने के बाद मुझे यहाँ पे प्रोफाइल अपेयर हो रहा। साथ में मुझे क्या चेंज करना है, मेरा प्रोफाइल है, प्रोफाइल पिक है, वो भी चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे चॉइस पे क्लिक किया, अगर मैंने ये चॉइस करके अपडेट किया, रिक्वेस्टिंग सेंडिंग प्रोफाइल अपडेटेड, रिप्रेस कर देख सकते हो कि जो मैंने चॉइस किया था आपको वही प्रोफाइल हम पे दिखेगा। साथ साथ में आपको वीपीआरएन दिखेगा, यहाँ पे भी आपको प्रोफाइल ऑप्शन दिखा, आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। ये हो गया हमारा प्रोफाइल एक्टिवेशन। अभी जैसे मैंने अगर एचओडी मॉडल लॉगिन किया तो मुझे वहाँ पे दिखेगा एचओडी मॉडल में जरा मेरा जो
प्रोफाइल स्टेटस है वो कंप्लीटेड दिखेगा। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट मास्टर। जो स्टूडेंट मास्टर के अंदर मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, बाय क्लास और आई मार्क्स बोल के। कि स्टूडेंट मास्टर के अंदर बाय क्लास पे क्लिक करने के बाद मुझे क्लास वाइज जितने भी डिटेल्स है मुझे यहाँ पे दिखेगा, देख सकते हैं। तो साथ साथ में मुझे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो आई मार्क्स है। ठीक है, तो इंटरनल मार्क्स भी हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जो भी हम कॉलेज में डे बाय डे टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के हिसाब से हम मार्क एंट्री कर सकते हैं। और वो जो मार्क्स है डायरेक्टली स्टूडेंट डैशबोर्ड को भी अपेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास चॉइस कर लेता हूँ, सेमेस्टर चॉइस कर लेता हूँ, सब्जेक्ट चॉइस कर लेता हूँ, नेम ऑफ द एग्जाम टेस्ट 1, स्टूडेंट। कोई तो म्यूट नहीं किया, म्यूट नहीं किया, म्यूट नहीं किया। मोइन कादरी, म्यूट करो आपका। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट क्लास भी चॉइस किया, उसके बाद में मैंने सेमेस्टर चॉइस किया, उसके बाद में सब्जेक्ट चॉइस किया, उसके बाद में मैंने यहाँ के टेस्ट का नाम लिया, टेस्ट 1 गेट स्टूडेंट पे क्लिक किया। जो भी मैंने सेलेक्ट किया था वो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आ गए उसके सामने। मैंने आउट ऑफ कितने मार्क्स है लिया है, कितना मार्क्स है, और यहाँ पे सेव करते जाऊंगा मैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया एक मार्क्स का। उसके बाद में एलएमएस पे भी, जैसे मैंने मैनेज एलएमएस पे क्लिक किया, मुझे कुछ एलएमएस कंटेंट अपलोड करना है स्टूडेंट स्टडी पर्पज के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे पीपीटी देना है, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट आउट नोट्स देने का जरूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट चाहे तो ले सकता है, अगर नहीं चाहे तो सॉफ्ट कॉपी ले सकता है। ठीक है, तो उसको मेल थ्रू देने से, हम एकेडमिक सॉफ्टवेयर थ्रू दिए तो क्या रहेगा, हमारे पास भी कुछ कंटेंट रहेगा और कॉलेज का भी हेल्पफुल रहेगा। हम क्या करें हम क्या नहीं करें ये भी आपको समझ में रहेगा, और स्टूडेंट को भी जो भी एकेडमिक का जो भी लेवल्स होंगे वो सभी सिस्टम थ्रू हो जाएगा। और हमारे पास रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है यहाँ पे कि हम क्या दिए स्टूडेंट को, क्या नहीं दिए, क्या सब्जेक्ट किए, क्या सब्मिट नहीं किए। हम इसको और भी बेहतर बना रहे हैं पर नैक के हिसाब से। और जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सेलेक्ट क्लास है, सेलेक्ट सेमेस्टर है, सेलेक्ट सब्जेक्ट है, ऐड फाइल्स है, डिस्क्रिप्शन है। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पीपीटी अपलोड कर सकता हूँ, पीडीएफ अपलोड कर सकता हूँ। इसके साथ में मैंने आगे हम बनाएंगे कि इसके साथ में हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं और ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। और जो भी ये मॉड्यूल रहेगा एलएमएस का, ये ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन रहने के बाद स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट लाए होंगे, ज्वाइन होंगे, वो घर से भी स्टडी कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में कितना ही स्टडी कर सकते हैं। मैंने ये क्लास चॉइस कर लेता हूँ, यहाँ पे सेमेस्टर चॉइस कर लेता हूँ, सब्जेक्ट चॉइस कर लेता हूँ। ऐड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद में मुझे कुछ फाइल्स यहाँ पे मिल रहा, मैंने एक इमेज डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन टेस्टिंग एलएमएस कंटेंट्स। मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो सेंड हो गया कि सेंडिंग टू स्टूडेंट पैनल। कि कौन से स्टूडेंट के पैनल का जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 1 के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं ना उनको जाएगा। अब अगर आपको चाहे तो व्यू और डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप सेव भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप इमेजेस का अलावा पीपीटी अपलोड कर सकते हो, इसके साथ में यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हो, उसके साथ साथ आप ऑडियो अपलोड कर सकते हो, उसके साथ साथ आप पीडीएफ, डॉक फाइल्स, पीपीटी, जो भी आपको कंटेंट रहेगा आपका स्टडी मटेरियल, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और ये जो कंटेंट जाएगा डायरेक्टली स्टूडेंट पैनल को जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लास एंड सब्जेक्ट एंड सेमिस्टर। ये हो गया एलएमएस। उसके बाद में अटेंडेंस आप देख सकते हो, न्यू अटेंडेंस। साथ में यहाँ पे चॉइस करेंगे बीएससी फर्स्ट, कौन सा सब्जेक्ट का अटेंडेंस है, गेट पर क्लिक करने के बाद जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अपेयर हो गया। साथ में जो स्टूडेंट है उसको प्रेजेंट है तो प्रेजेंट करूंगा, अगर अपसेंट है तो अपसेंट करूंगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट करूंगा, जो अपसेंट है उसका अपसेंट करूंगा। यहाँ पे अटेंडेंस का डेली रिपोर्ट भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आईडी दिख रहा है, इसको नियम भी दिख जाएगा, तो मैंने इसको देख लूंगा, सही कर लूंगा।
यहाँ पे देख सकते हो उसका नाम के साथ में आपको इसका शेडर दिख रहा, प्रेजेंट है उसका ऑप्शन, जो प्रेजेंट है उसका प्रेजेंट दिख रहा, जो ऑप्शन है ऑप्शन दिख रहा। आप यहाँ पे टेक प्रिंट आउट लेके आप सबमिट भी कर सकते हो ऐसा। ये हो गया अटेंडेंस और अटेंडेंस रिपोर्ट का हो गया। ये डैशबोर्ड हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि आपके हिसाब से आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया, प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिख रहा। लॉग आउट कर लेता हूँ। ये हो गया फैकल्टी मॉडल। हम अभी आ जाएंगे जो डिपेंडेंसी मॉडल था, एचओडी मॉडल्स। मैं फिर से एचओडी मॉडल का आके मैंने चेक करता हूँ कि फैकल्टी जो फिलअप किया था फॉर्म अकाउंट का वो एक्टिव हुआ है नहीं हुआ है। मैं बैक आ जाता हूँ मेन मॉडल्स पे, एचओडी पे क्लिक करता हूँ। फैकल्टी के अंदर ऐड फैकल्टी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली उसका जो स्टेटस है ना वो कंप्लीट आ गया। अब उसको चाहे तो और भी डीएक्टिवेट कर सकते हो। इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट कैंसिल कर लेता हूँ। साथ साथ में आपको यहाँ पे क्लर्क मॉडल भी दिख रहा। मैं यहाँ क्लर्क मॉडल लॉगिन कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने क्लर्क लॉगिन के अंदर, क्लर्क मॉडल के अंदर जो लॉगिन है उस पर क्लिक करता हूँ। मैंने डिफ़ॉल्ट ही कुछ आईडी बना के रखा हूँ। जो 1 नंबर है कॉम्प्रेसर का आईडी है और ग्रांटेबल का है। जो 2 नंबर है वो तंडे सर का है और नॉन ग्रांटेबल का है। मैंने एग्जांपल के लिए बना के रखा हूँ कि आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे मैंने तंडे सर का लॉगिन किया तो मुझे जितने तंडे सर का जो कैटेगरी है वो है नॉन ग्रांट का। तो मैंने आपको देख सकता हूँ जैसे मैंने लॉगिन करने के बाद मुझे जो दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन ग्रांट का ही दिख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे ये देखना है कि स्टूडेंट ट्रांजेक्शन देखना है नॉन ग्रांट का। जैसे मैंने नॉन ग्रांट ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया तो जितने स्टूडेंट्स हैं ना फॉर्म फी भरा है वो पूरा सा पूरा मुझे यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा। आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले जो हमारा ओल्ड मॉडल था जो हम पिछले बार यूज किए थे तो उसे एडवांस मॉडल है 1.1 था, 1.1 था, ये 1.2 पे है। तो वहाँ पे कुछ डुप्लीकेट से एंट्री पे प्रॉब्लम आ रहा था, डुप्लीकेट कॉपी प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व करके चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका डुप्लीकेट कॉपी भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा तारीख के अंदर कितना फी भरा है और कितना भरा है कितना नहीं है। ओके, इसका रिसीट नंबर आपको दिखेगा, यूपीआर दिखेगा, नाम दिखेगा, एलिजिबिलिटी दिखेगा, क्लास दिखेगा, ट्रांजैक्शन का आईडी दिखेगा। ये यूनिक रहेगा। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था आपको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया स्टूडेंट का फी के बारे में, तो आपको स्टूडेंट को ये मांगना है ट्रांजैक्शन आईडी। अगर आपको ट्रांजैक्शन आईडी मालूम पता नहीं था स्टूडेंट का तो आप वीपीआरएन भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी पता नहीं था तो रजिस्टर मोबाइल नंबर या रजिस्टर ईमेल आईडी से भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगा, ट्रांजैक्शन का टाइम आ जाएगा। अगर चाहे तो आप कितनी भी यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया नॉन ग्रांट का फी डिटेल्स। फिर ट्रांजैक्शन, साथ में मुझे ये चेक करना है कि राहुल नीता तानाजी तानजी ये कितने बार एंट्री किए हैं, कितने बार इनका ट्रांजैक्शन हुआ है। तो एक ही बार हुआ है। हम उसको यहाँ पे कंट्रोल ऐप करके ही देख सकते हैं कि कितने बार ट्रांजैक्शन हमारे साथ हुआ है, यानी कि कितने बार पेमेंट भर चुका है। यहाँ पे दूसरा अपने ये स्टूडेंट नॉन ग्रांटेबल का है तो तंडे सर का जो है ये आईडी है ग्रांटेबल नॉन ग्रांटेबल के अंदर, तो ये देख नहीं सकते इसलिए इनको रोल मिसमैच दिखा रहा। ओके, तो उसके साथ साथ में और भी यहाँ पे दिखा है कि फी रिपोर्ट्स में जैसे मैंने क्लिक किया नॉन ग्रांट के अंदर तो मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट दिख रहे हैं। ये आपको पूरा सा पूरा अपेयर हो रहा है लेकिन आपको यूज नहीं होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ ईसीएस यहाँ पे नॉन ग्रांट के अंदर मैंने बीसीए चॉइस कर लेता हूँ। बीसीए फर्स्ट किधर गया, बीसीए फर्स्ट
एलिजिबिलिटी चॉइस करता हूँ, पेइंग, मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट किसके अंदर बीसीए फर्स्ट के अंदर पेइंग के कैटेगरी एलिजिबिलिटी के अंदर कितने स्टूडेंट थे और कितना उनका टोटल फी था, कितना पेड किया है और रिमेनिंग फी कितना पेंडिंग है, ये भी उनको यहाँ पे पूरा सा पूरा लिस्ट आउट दिखेगा। उसके साथ में फी रिपोर्ट हो गया। उसके बाद एडमिशन, एडमिशन लेना है तो ये जो फी, ये जो फॉर्म है ये नोटिस करना है क्लर्क को कि ये फर्स्ट टाइम इतना ही भरना है। फर्स्ट टाइम इतना भरना है, इसका मतलब जो ये है कि एडमिशन लेते हो कितना ही भरना है, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइम फी भरेंगे वो इंस्टॉलमेंट में रहेगा। कोई आते भी ये फॉर्म यूज करने का जरूरत नहीं है, ये फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्म है एडमिशन फीस जो फॉर्म है, ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट एडमिशन के लिए, फर्स्ट एंट्री के लिए इतना यूज करेंगे। सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट आते हैं वो यूज करेंगे हम फी के अंदर, ऐड इंस्टॉलमेंट मेनू के अंदर। जैसे उसको यहाँ पे टाइप चॉइस किया, उसके बाद में मैं क्लास चॉइस किया, एलिजिबिलिटी चॉइस किया, वीपीआर एंटर किया। गेट करने के बाद मुझे वो फी यहाँ पे अपेयर नहीं होगे, मुझे जो एंट्री करना मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। साथ में मुझे इतना दिखेगा कि कौन सा स्टूडेंट ने कितना फी उसका कोर्स अमाउंट कितना है, टोटल फी कितना पेड किया है, पेंडिंग कितना है, रिमेनिंग कितना बचा है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टूडेंट चॉइस कर लेता हूँ। पेज 2 पे रहेगा। यानी तो यही पे ले लेंगे, चलेगा। चलो इसको मैंने ले लेता हूँ। ये पी आर एन इसका क्लास है बीएससी फर्स्ट। अच्छा बीएससी फर्स्ट, पीसीए, फी, यार्ड इंस्टॉलमेंट, ऑन ग्रांट, पीसीए फर्स्ट। आप ये देख सकते हो कि कोर्स फी कितना है और पेड कितना किया है, पेंडिंग कितना बचा है, रिमेनिंग कितना है। कि इसका मतलब इसका कुछ भी पेमेंट फी पेंडिंग यहाँ पे अमाउंट नहीं है। अगर यहाँ पे अगर सपोज समझ लो कि यहाँ पे 2000 1000 था, तो मैंने फिर यहाँ पे 2000 1000 एंट्री किया, तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट 1000 ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसका पेंडिंग फी कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यह होगा कि जो टोटल फी टोटल पेड है ये यहाँ इसको माइनस करके रिमेनिंग में दिखाएगा। ऐसा हम एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया इंस्टॉलमेंट का, ये हो गया एडमिशन का, फर्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से क्लर्क सर को बता सकता हूँ, तंडी सर को वगैरह बता सकता हूँ कि ये जो एडमिशन है ये सिर्फ आपको एडमिशन लेते हो कितना यूज़ करना है। अगर सेकेंड टाइम आपको फी एंट्री करके लेना है तो ये आपको ये ऑप्शन नहीं यूज करना है, आपको ऑप्शन यूज करना है ऐड इंस्टॉलमेंट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा फी डिटेल्स के अंदर, एडमिशन ये फर्स्ट टाइम यूज करना है, ये ऐड इंस्टॉलमेंट जो है ये आपको कंटिन्यूसली सेकेंड टाइम यूज करना है। ये जो प्रॉब्लम आएगा सिर्फ और सिर्फ आई थिंक नॉन ग्रांट के लिए आएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फी रहेगा, ग्रांटेबल को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि ऐसा कुछ है तो ऐड कर सकते हैं। बाद में लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऐड फी। जैसे मैंने ऐड फी पे क्लिक किया, ये ऐड फी आपको इसलिए यूज करना बताता हूँ मैं कि कौन से क्लास के अंदर, कौन सी एलिजिबिलिटी के अंदर कितना फ़ी है यहाँ पे मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मुझे ग्रांटेबल के अंदर मैं चॉइस करता हूँ बी ए सेकेंड के अंदर एसी एस टी स्कॉलरशिप के अंदर एडमिशन कितना फ़ी है, ट्यूशन फ़ी कितना है, टीसी बोनाफाइड कितना है, यह हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो 30 एंट्री किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट 30 हो गया, को सेव कर सकते हैं। मैंने ओरिजिनल एंट्री है बल्कि वहाँ पे कुछ नहीं डालूंगा, बस आपको डेमो दिखाऊंगा।
ये हो गया ऐड फी। साथ में तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आप स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पूरा सा पूरा स्टूडेंट अपीयर हो जाएगा। तो आपको सर्च करना है तो कंट्रोल एफ करके सर्च कर सकते हैं, वीपीआर सर्च करते हैं, मोबाइल नंबर से या नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो सामने व्यू डॉक बोल के एक ऑप्शन है, व्यू डॉक पे मैंने क्लिक किया तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है कैंपस कनेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अगर आप कैंपस में बैठ के आप चेक किए तो आपको डॉक्यूमेंट भी दिखेगा। तो वो जो स्टूडेंट आप चॉइस किए थे उसका आप एसएससी देख सकते हैं, एचएससी का देख सकते हैं, ग्रेजुएशन का देख सकते हैं, जो भी आपने लिस्ट आउट किया है, लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट विथ कास्ट कैटेगरी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और डोमाइसाइल सर्टिफिकेट, जो भी नैक के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन मिला था उसके हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट आसान किया हमने। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। के साथ में हमने फिर से एडवांस यहाँ पे बनाया कि जनरेट ईसी भी कर सकते हैं और जनरेट बोनोफाइड भी कर सकते हैं। ये आपको एक थोड़ी दिन के अंदर ये भी आपको मॉडल मिल जाएगा, जनरेट टीसी और जनरेट बोनोफाइड, कि आपको फिर से मैनुअल एंट्री करने का, मैनुअल रजिस्टर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ स्टूडेंट आने के बाद जस्ट स्टूडेंट का नाम के सर्च करना है, उसका आईडी लेके आपको कॉपी कर लेना है, जस्ट जनरेट टीसी पे जाना है, आपको पेस्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हो। आप और सिर्फ आप टीसी एक ही बार दे सकते हो, सेकेंड बार आप टीसी नहीं दे सकते हो। इसके साथ साथ आपको रजिस्टर भी मेंटेन होगा। और सेकेंड ऑप्शन जो है जनरेट जनरेट बोनोफाइड, ये इसलिए यूज होगा कि सेम प्रोसेस होगा बोनाफाइड जनरेट करने के लिए, बस स्टूडेंट का आईडी चाहिए। अगर आईडी आपको पता नहीं तो आप डायरेक्ट आल स्टूडेंट के अंदर जाके आप सर्च कर सकते हो, सर्च करके आप आईडी कॉपी करके आप जनरेट बोनाफाइड के अंदर आके पेस्ट करके आप बोनाफाइड जनरेट कर सकते हो। और आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो कौन सा स्टूडेंट को, कितने स्टूडेंट को मैंने कितने बार बोनाफाइड दिया, ये भी आप यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप वो यहाँ पे रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि क्लास वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, एक क्लर्क भी क्लास वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके साथ साथ में डेली रिपोर्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा डेट का रिपोर्ट चाहिए वो डेट चॉइस करके सर्च पे क्लिक करने के बाद तो पूरा सा पूरा ये अपेयर हो जाएगा। उसके साथ साथ में और प्रिंट भी यहाँ पे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा। कोई एग्जाम्पल के लिए हमने क्या कहेंगे, ये डेट चॉइस करेंगे। कोई बता सकता है ये डेट मुझे कि गए पिछले साल कौन सा डेट को एंट्री चल रहा था? अक्टूबर में होगा शायद। डेट सर सितंबर अक्टूबर की ले लो। 2020 2020 का 2020 अक्टूबर 8 ले लूं? देख लो, चेक करो। नहीं एक भी नहीं है। नहीं, अगस्त में नहीं, सितंबर और अक्टूबर में होगा शायद। चलो 2020 सितंबर 20 तो संडे आएगा, नहीं है। हाँ, 9/4/2020। चार 4/9 देखो, 4/9। ठीक है देख लेंगे। तो आपको ऐसा हेड के वाइज आपको यहाँ पे लिस्ट आउट मिलेगा, कोई क्लास कौन सा क्लास है, कौन सी एलिजिबिलिटी है, रिसीट नंबर क्या है, एडमिशन क्या है, एडमिशन का अमाउंट कितना है, रजिस्ट्रेशन कितना है, और टोटल अकाउंट इसका यहाँ पे टोटल फी, उसके बाद में टोटल पेड, उसका रिमेनिंग फी आपको यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। चलो आगे का मॉडल एक्सप्लेन करो। जगह क्लास का रिपोर्ट दे सकते हैं, फैकल्टी रिपोर्ट और कैटेगरी रिपोर्ट सेम टू सेम जैसे पहले दिखे थे वही यहाँ पे आपको अपीयर हो रहा। इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। तो क्लर्क मॉडल के साथ साथ में चलो स्टूडेंट मॉडल भी दे सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट पे ओपन किया तो मुझे कुछ स्टूडेंट का लॉगिन चाहिए, मैं लॉगिन ले लेता हूँ। HSC नंबर, अच्छा ये नोटिस करना है कि स्टूडेंट का लॉगिन HSC नंबर है, यूज़र आईडी, उसका पासवर्ड जो है, उसका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो स्टूडेंट को आपको ये गाइड करना है कि जैसे फर्स्ट टाइम वो लॉगिन करेगा तो उसको ये अग्रीमेंट फॉर्म दिखेगा कि स्टूडेंट अग्रीमेंट फॉर्म, उसका नाम दिखेगा, कॉलेज का नाम दिखेगा, यूपीआरएन दिखेगा, डिपार्टमेंट दिखेगा, साथ साथ में क्लास दिखेगा। तो कौन सा ग्रांटेबल नॉन ग्रांटेबल ये आपको चॉइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रांटेबल करके अग्री कर लेता हूँ, अग्रीमेंट से कि एक बार पूछेगा नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेगा। उसको साथ साथ में आप यहाँ पे के दे सकते हो, फोटो भी आया, उसका नाम आया है, वीपीआरएन आया है, साथ साथ में कौन सा सब्जेक्ट के अंदर, कौन से सेमेस्टर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, उसका कोड क्या है, जो हमने ऐड किए थे पहले वो अभी यहाँ पे अपेयर हो गया। साथ साथ में हेल्प डेस्क भी है, हेल्प डेस्क पे क्लिक करके जो भी हेल्प चाहे तो यहाँ पे हेल्प मांग सकते हैं। उसका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा, जो एडमिशन के वक्त इंफॉर्मेशन भरे थे वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते हो। के साथ साथ में एकेडमिक डिटेल्स में LMS जो मैंने अपलोड किया था BSc फर्स्ट के अंदर, तो वही इसको यहाँ पे दिख रहा। जैसे व्यू डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो LMS कंटेंट है, डेस्टिंग कंटेंट सब कुछ यहाँ पे दिख रहा। साथ साथ में अटेंडेंस है, खुद का अटेंडेंस यहाँ पे सर्च कर सकता है वो कि अटेंडेंस का कितना है, कितने बार एब्सेंट थे, कितने बार प्रेजेंट थे। तो भी यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे स्टूडेंट खुद ही देख सकता है। के साथ साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल्स भी है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से सेमेस्टर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट कोड क्या है, नाम क्या है, ये स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ना IMR कौन सा एग्जाम दिया है, IMR के अंदर कितना मार्क्स पड़ा है, लास्ट का अपडेट कब हुआ था। ठीक है। तो साथ में ईयर, उसका आउट ऑफ मार्क्स था और कितना मार्क्स आ गया, ये सभी स्टूडेंट पैनल पे भी अपेयर हो जाएगा। जो हम फैकल्टी के पैनल के अंदर जो आए मार्क्स दिखे तो वो मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। फैकल्टी फीडबैक, तो अगर स्टूडेंट फीडबैक देना है तो फैकल्टी फीडबैक खुद लॉगिन करके यहाँ पे दे सकते हैं। क्या यहाँ पे लॉगिन करना, स्टूडेंट को यूपीआरएन और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद एक मॉड्यूल ओपन जाएगा तो मॉड्यूल के अंदर दे सकते हैं। तो वही यही जो फीडबैक है डायरेक्टली आ जाएगा डिपार्टमेंट के अंदर, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टूडेंट दिया है वो डिपार्टमेंट के अंदर, और जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट जो आया है फीडबैक के हिसाब से वो हैंडल कर सकता है। तो फी डिटेल्स, जैसे मैंने फी डिटेल्स पे क्लिक करके मैं माई फी डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ माई ट्रांजेक्शन पे, तो यहाँ पे एक एरर है, तो ये देख लेंगे क्या है। उसके साथ में यहाँ पे इसको दिखेगा कि ट्रांजेक्शन है, अच्छा हम कैंपस को कनेक्ट नहीं इसलिए एरर आ रहा, क्योंकि सर्वर जो है कैंपस में है, जैसे हमारे पास डेमो डेटा है इसलिए आ रहा। क्या है, जैसे ये फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन दिखेगा, और ट्रांजेक्शन क्लिक करने के बाद में हमें स्टूडेंट को क्या दिखेगा, ट्रांजेक्शन ID दिखेगा और कितने अमाउंट पे किया है, रिमेनिंग कितना है, ट्रांजेक्शन डेट कितना है और ट्रांजेक्शन टाइम कितना है, और कितने बार वो एंट्री किया है फॉर्म अमाउंट पे किया है। अगर 3 बार अमाउंट पे किया है तो अगर सपोज मान लो कि 30,000 उसका P है, एक बार 10,000 पेड किया, एक बार 10,000 पेड किया, एक बार 10,000 पेड किया, तो उसको 3 बार अकाउंट यहाँ पे दिखेगा, 3 ट्रांजेक्शन दिखेंगे और उसका टाइम दिखेगा, उसका डेट दिखेगा कब एंट्री दिया है। ये भी बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, स्टूडेंट को भी दिखेगा कितना फी पेंडिंग है और कितना भरा है कितना नहीं भरा है।
तो ऐसा मैनेजमेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल देख सकते हैं कि हो गया ना? ओके। तो ऐसा हमारा मॉडल है, मैंने एमआईएस मॉडल, इसके साथ में आप देख सकते कि इतना ढेर सारा 6 7 8 मॉड्यूल्स हैं। तो ऐसा वर्क होगा। अगर कोई किस क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं किसी को। याच्यामध्ये काय नाविन्यपूर्ण आणखी काय कोणाला काय सुचवायचं वगैरे असेल तर सुचवू शकता. हॅलो. मग ज्या वेळेला हे मॉडेल तुम्ही ऍक्च्युअली काम करायला सुरुवात कराल त्यावेळेला तुम्हाला समजेल की मॉडेल जे आहे हे किती सोयीस्कर वगैरे आहे. एक आपल्याला चांगलं आणि मोठं ज्याला म्हणू आपण की कपाट वगैरे आहे की नाही असं दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये साहित्य किती नेटकेपणाने आपण ठेवतो त्याच्यावरती तुमचं डॉक्युमेंट जे आहे की नाही ह्याचं जनरेशन होईल. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं डॉक्युमेंट तुम्हाला जनरेट करावं लागणार नाही. जो रिपोर्ट आहे की नाही म्हणजे हे जे मॉड्यूल दिलेले आहेत त्या मॉड्यूलमध्ये जे जे काही तुम्ही काम करून अपलोड कराल तेथे त्याच वेळेला प्रिन्सिपलना, मॅनेजमेंटना, विद्यार्थ्यांना ते दिसणार आहे, अपिअर पण होणार आहे. आणि डिपार्टमेंटची जी काय कामं आहेत स्पेशली आणि स्पेसिफिकली खेडला करावी लागणार आहेत ते सगळेच्या सगळे डॉक्युमेंट जे आहेत ते ऑटोमॅटिकली जनरेट होतील. म्हणजे अगदी सुरुवातीला वर्कलोड पासून म्हणजे तुमच्या डिपार्टमेंटला 4 लोक आहेत तर त्या 4 लोकांना 16 पेपरचं डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही तुमच्या एचओडीच्या लॉग इन मधून फॅकल्टीच्या लॉग इन मध्ये केल्याच्या नंतर फॅकल्टीचं काम चालू होईल. फॅकल्टीच्या बरोबर सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये एलएमएस आहे, असाइनमेंट आहे, ब्रिज कोर्स पासून जेवढे काय ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या सगळ्याच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी घेण्यामध्ये फॅकल्टीला कुठल्याही प्रकारची याच्यामध्ये अडचण वगैरे येणार नाही. आणि रिपोर्ट जो आहे की नाही तो ऑटोमॅटिकली जनरेट होईल. म्हणजे तुमचं आणि फॅकल्टीचं इंटरॅक्शन असेल, तुमचं आणि विद्यार्थ्यांचं इंटरॅक्शन असेल, तुमचं आणि प्रिन्सिपलचं इंटरॅक्शन असेल, तुमचं आणि मॅनेजमेंटचं इंटरॅक्शन असेल, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना ह्या ऑटोमॅटिकली ह्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सगळ्या एकाच वेळेला होणार आहेत. म्हणजे ज्या वेळेला तो विद्यार्थी ऍडमिशन घेतो डिरेक्टली त्या विद्यार्थ्याचे जे विषय असतील त्या डिपार्टमेंटला तो विद्यार्थी जाऊन त्यांच्या लॉग इन मध्ये पडेल. आणि मग हेडचं जे काम आहे ना ह्याच्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सोपं साधं झालेलं आहे. फक्त त्यांनी अलाउड करायचे आहेत की तुमचे 4 फॅकल्टी मेंबरला 16 पेपर, फॉर एक्झाम्पल 1 ते 16 पेपर आहेत तर 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर आणि 9 नंबर हे पेपर मला दिले तर त्याचं जे काम आहे की नाही पुढचं ते सगळं पूर्णपणे मला करायचं आहे. आणि तुमच्या वर्कलोडचा चार्ट पासून, टाइम टेबल पासून सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ऑटोमॅटिकली जनरेट होणार आहेत. आणि तुम्ही किती वाजता कुठला व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे त्याच वेळेला आणि त्याच क्षणाला तो व्हिडिओ त्या विद्यार्थ्याला ऍक्सेस साठी मिळणार आहे. ह्याच्यामध्ये एकदम सुटेबल आणि साध्या पद्धतीनं सगळी जी कामं आहेत ना हे एकदम प्लेजरस पद्धतीनं होतील. म्हणजे कुठलाही रिपोर्ट तुम्हाला जनरेट करण्याची आवश्यकता नाही. या 2 आणि 3 दिवसामध्ये येणाऱ्या म्हणजे ह्या आठवड्यामध्ये प्रिन्सिपल, त्याच्यानंतर मॅनेजमेंट आणि एचओडीची ऍडमिन कडून आपण अपॉइंटमेंट करतो आहोत. आणि ह्या 4 दिवसामध्ये सगळ्यांना मी, सगळ्या एचओडीना त्यांचा लॉग इन आयडी आणि जो पासवर्ड आहे तो दिल्याच्या नंतर त्यांच्या डिपार्टमेंटचं काम जे आहे पुढे फॅकल्टीला ऍड करण्यापासून, पेपर डिस्ट्रीब्युशन पासून, वर्कलोड पासून, टाइम टेबल पासून, असाइनमेंट पासून सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या तुमच्या डिपार्टमेंटला तुम्हाला दिलेला जो कम्प्युटर आहे त्याच कम्प्युटरवरती हे सगळं ऍक्सेस तुम्हाला घेता येईल. आणि एका साधारणपणे महिन्याभराच्या अंतराने आपण ह्याचं ऍप डेव्हलप करणार आहोत. त्या ऐप के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ. हाँ बोलो. ओके. तो हम ऐसे ऐप डिजाइन कर रहे हैं कि जो भी ऐप है वो ऐप में वो जो ऐप है वो कॉलेज का वाईफाई के हिसाब से चलेगा. मतलब जो भी हमारा परसों हम सर्वर खरीदी किए, नया सर्वर, वो जो सर्वर है वो कैंपस, जितने कैंपस का एरिया है वो कैंपस के एरिया में इतना ही क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा. और कैंपस एरिया छोड़ के बाहर जाने के बाद हमारा जो डेटा है बाहर एक्सेस नहीं होगा. जितना हमारा कैंपस है ना उतने हमारा डेटा रहेगा. और डेटा एक्सेस करने के लिए या सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए हर एक स्टूडेंट को कंप्यूटर ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. वो खुद का मोबाइल में भी कर सकता है. हमारा डेटा कहाँ रहेगा, लाइव नहीं रहेगा, हमारा डेटा रहेगा हमारे कैंपस का सिस्टम के अंदर ही. लेकिन डेटा एक्सेस करें
लेकिन डेटा एक्सेस जो कर रहे हैं वो, प्लीज म्यूट कर दो मुझे। आदलिंगे सर तुमचा ऑडिओ बंद करा. आदलिंगे सर थोड़ा कृपया ऑडिओ बंद करा. ठीक है, वो जो ऐप है तो पूरा सा पूरा ऐप में सर्वर का मशीन जो भी डेटा है वो डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू जाएगा स्टूडेंट का मोबाइल के अंदर, और स्टूडेंट मोबाइल यूज करेगा। स्टूडेंट मोबाइल के अंदर जो ऐप सर्वर का जो भी डेटा है वो डायरेक्टली इंटरेक्शन रहेगा बाय यूजिंग एपीआई थ्रू मोबाइल को, और मोबाइल में स्टूडेंट के हर एक स्टूडेंट के पास जो यूनिक ऐप है वो ऐप इंस्टॉल रहेगा, और स्टूडेंट को वो ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में ही मिलेगा। प्ले स्टोर को जाके उसको डाउनलोड करना है और ऐप यूज करना है सिर्फ और सिर्फ कैंपस में। और कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ केबल का प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जस्ट हम एक राउटर बटन है वाईफाई के लिए, ऑलरेडी वो भी सेटअप रहेगा मुझे मेरे ख्याल से कॉलेज में। जस्ट उसको वाईफाई पे कनेक्ट करना है, वाईफाई और कैंपस में वाईफाई प्रेजेंट कर देना है, इतना ही। स्टूडेंट आएगा जस्ट वाईफाई सर्च करेगा, कनेक्ट कर लेगा, उसका काम वो करेगा। और फैकल्टी को भी, हर एक फैकल्टी को भी कॉलेज के अंदर मैन्युअली प्रेजेंटेशन अटेंडेंस लेना जरूरी नहीं है, जस्ट मोबाइल पे यूज कर सकता है। जस्ट उसको क्लास सेलेक्ट करना है और उसके सामने जितने मोबाइल के अंदर जितने स्टूडेंट दिख रहे हैं उन स्टूडेंट का नाम सब चेक करना है, और स्टूडेंट के नाम के सामने जो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट पे क्लिक करना है, ऑप्शन है तो ऑप्शन करना है, ऑप्शन क्लिक करना है और सबमिट कर लेना है, और डायरेक्टली जो डेटा है डायरेक्टली ऑफलाइन सर्वर को आ जाएगा, यानी कि कॉलेज का जो सर्वर है सर्वर में आ जाएगा। कि ये सिस्टम यूज करने के लिए कंप्यूटर चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, कि ये मोबाइल थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, ओके, कुणाला काय विचारायचं असेल तर आणि सुचवायचं असेल तर बघा. नाही मला काय म्हणायचंय, तुम्ही अटेंडन्स मॅन्युअली घ्यायला सांगताय. मैन्युअली अटेंडेंस मैन्युअली घ्यायला सकता है नहीं, वो स्टूडेंट का नेम है, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट करने का, एब्सेंट होगा तो एब्सेंट करने का. यस यस आपने बताया यस। ये मैन्युअली करने का है, तो इसका क्या मतलब है? वो सॉफ्टवेयर में आ सकता है. अगर आपके नहीं पास सर, हम लोग ना, एक मिनट इमाम सर मैं बोलता हूँ सर, हम उसको अपने बायोमेट्रिक्स भी कर सकते हैं सर. बायोमेट्रिक नहीं यूज कर सकते ना, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से हम लोग टच करके सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं सर हम लोग. नहीं स्टूडेंट को बायोमेट्रिक नहीं ना प्रोवाइड कर सकते हम अभी इस हाल में. हम बायोमेट्रिक नहीं यूज कर सकते ना. और दूसरा ये मेरा सवाल है, ये सब कॉलेज में भी होगा, अब स्टूडेंट घर में है, आपने बताया कि ये सब कॉलेज में, कॉलेज के कैंपस के अंदर वाईफाई जो एरिया है वाईफाई का, वाईफाई के रेंज में ही करना पड़ेगा, तो इसका क्या स्टूडेंट के क्या फायदा है? सर और दूसरा ये और एक ऑप्शन हम कर सकते हैं सर. और एक, हाँ सर, और एक है, मुझे बोलने दो. और एक है, एचओडी को तुम आधार कार्ड, आधार नंबर प्रोवाइड करने को बोला है, आधार कार्ड इंटर करने को बोला है, फैकल्टी को नहीं. आधार नंबर इज, ये सोशल मीडिया का मिलेगा, मेरा आधार नंबर किसी को मिल जाएगा तो उसका मिसयूज हो सकता है ना. आधार ईमेल से तुम कर सकते हो, आधार नंबर कंपलसरी मत करो. वो आधार नंबर के बजाय ईमेल पे भी तुम लॉग इन कर सकते हो एचओडी का. और ये जो है स्टूडेंट का डेटा, ये फैकल्टी को सब्जेक्ट है. मुझे फैकल्टी जब लॉग इन करेगी तो उसको बीएससी फर्स्ट के कितने स्टूडेंट है, स्टैटिस्टिक्स को बीएससी फर्स्ट को कितने स्टूडेंट है, बीएससी सेकंड को कितने स्टूडेंट है मालूम पड़ जाता है. लेकिन एचओडी को नहीं मिलता. ये आपने बताया, मुझे नहीं सब कुछ दिखाई पड़ा. लेकिन फैकल्टी जब लॉगिन करती है, फैकल्टी को जब आप लॉगिन करते हैं, फैकल्टी जब लॉगिन करती है तो उसको सब मिल जाता है. और दूसरा ये है कि आपने ऐड सब्जेक्ट किया है, मैं कौन सा पेपर, मेरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, आपने बीएससी फर्स्ट सब्जेक्ट नेम बताया है, उसके बजाय पेपर नेम लिखना पड़ेगा. चलेगा? सब्जेक्ट सभी का, मेरे अंदर हम 4 लोग हैं, हम सभी का सब्जेक्ट नेम सेम आता है,
लेकिन पेपर नेम लिखेगा तो कौन से क्लास का है, क्लास मेंशन किया, पेपर नंबर मेंशन किया, पेपर नेम मेंशन किया, तो सब्जेक्ट ऐड सब्जेक्ट के बजाय पेपर ऐड पेपर नंबर लिखना पड़ेगा। चलेगा। और ये जो है अटेंडेंस उसका भी ऑनलाइन है, जो हम अभी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, गूगल मीट पे हम क्लासेस लेते हैं। गूगल मीट में प्रेजेंट ही आ सकती है ऑनलाइन, वो ऑप्शन है उधर। लेकिन इधर एमआई सिस्टम के बारे में जब हम एमआई सिस्टम का यूज करेंगे तो अटेंडेंस जो स्टूडेंट अटेंड हुआ है उसकी प्रेजेंटिंग ऑनलाइन कंपलसरी होनी चाहिए। आप मैन्युअली करने के बजाय ऑटोमेटिकली उसका वो प्रेजेंट है एब्सेंट है, कितने स्टूडेंट मेरे क्लास को एब्सेंट है आज, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, उसका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आना चाहिए। वो मैन्युअली करने का कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट है कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट है ये देखने पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रेजेंट एब्सेंट करने पड़ेगा। नहीं सर, इसका आपने स्टूडेंट का नेम, उसका कंपल्सरी सब्जेक्ट, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखाए, एक ही क्लिक पर मैंने जब क्लिक किया तो मेरा बीएससी फर्स्ट बीएससी सेकंड स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट की लिस्ट मुझे मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, वो ऑल सब्जेक्ट की मिलती है। ठीक है सर, मैं बात करूं? हेलो हेलो, बोल। हाँ सर, पहला जो आपका क्वेश्चन था कि फैकल्टी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं मिलेगा, डिटेल्स नहीं मिलेगा, कि शायद आप देख नहीं पाए कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था कि फैकल्टी के अंदर भी एचओडी के अंदर भी क्या क्या कर सकते हैं, कैटेगरी कर सकते हैं, को वहाँ पे भी ऑप्शन दिया मैंने कि बाय कैटेगरी वाइज डेटा देख सकते हैं, बाय क्लास वाइज डेटा सकते हैं, और उसके साथ साथ में बाय फैकल्टी वाइज भी डेटा वहाँ पे देख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन था कि मैन्युअली एंट्री कर दो कैसा चलेगा अटेंडेंस, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैनुअल नहीं चाहिए तो कि हमारे पास इंटेलिजेंट का कुछ सॉफ्टवेयर मतलब एक डिवाइसेस हैं कि हम आधार बेसिस पे अंके से भी हम क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं, बायोमेट्रिक से ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में हर एक स्टूडेंट को आप डिजिटल आईडी कार्ड असाइन किए, डिजिटल आईडी कार्ड उसमें चिप रहेगा, और चिप एंट्री किया, जैसा स्टूडेंट कैंपस में एंट्री होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेजेंट ऑप्शन जो भी है क्लास वाइज ले लेगा। तो अगर भीड़ में आएगा तो भी लेगा, सिंगल आएगा तो भी लेगा। तो आपको अगर आपके पास ऐसा कुछ फैसिलिटी चाहिए था तो आप इसको यूज कर सकते हो, उसका पास भी एक्सेल आप आएगा। नहीं दे सकते ना, हाँ, ले सकते बायोमेट्रिक की हैं फैसिलिटी नहीं दे सकते, डिजिटल स्मार्ट कार्ड की फैसिलिटी अभी नहीं दे सकते ना, ना। अभी इस साल भी नहीं दे सकते हम्म बायोमेट्रिक फैसिलिटी नहीं। अब ये कोरोना का संकट है, अभी कब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे हमें मालूम नहीं। हम्म सपोज अगली सेमेस्टर ही ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ेगा, हम्म तो ये जो एमआई सिस्टम है वो कैंपस में ही लैंड करने के बाद ही दिखाई देगा। ये मेरे कंप्यूटर को देख स्टूडेंट को कैसा लॉग इन करेंगे, और स्टूडेंट को ये डेटा घर बैठे मिलना चाहिए ना। सर ऐसा नहीं है, मैं ये बात बोल रहा था कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफलाइन ही चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। अगर आपके पास अगर अभी भी आपके क्लासेस ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, तो घर से भी काम कर रहा, तो यही सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन कर दो ना। हमारा ऑफलाइन करने का इंटेंशन इतना है कि जो ऑफिस में काम चलता है वो कैंपस में चलना चाहिए, घर में बैठ कर नहीं चलना चाहिए। हमारा इंटेंशन इतना ही है। अगर आपको पूरा से पूरा लाइव करना है, अगर जितने आपको हम फैसिलिटी दिखाए आप पूरा से पूरा लाइव कर सकते हैं, ओवरऑल वर्ड को कर सकते हैं, जस्ट फॉर कैंपस नहीं है, ओवरऑल वर्ड को भी कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में है, हम डेटा कितना शेयर कर रहे हैं ये हमारे हिसाब में है, हमारे हाथ में है। ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि कैंपस में इतना है और ऐसा नहीं है। हमारा इंटेंशन आपको बताया मैंने कि जो भी कैंपस का वर्क होगा वो कैंपस में ही होगा। कैंपस से बाहर गए ना तो हमारा डेटा सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आपको पहले से पूरा सिक्योरिटी का मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ साथ में आपको लाइव शेयर करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट कहीं से भी एक्सेस करेगा, यही फैसिलिटी एक्सेस करेगा। तो आपको कॉलेज में कैंपस में आने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा।
और क्लर्क भी वहां पे घर से ही पावती निकालेगा वो, ये भी कर सकते हैं हमने। यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे मॉडल आपके पास हाँ दोनों अवेलेबल भी है। कर सकते हैं ना, बस इतने कि ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है ये कर सकते हैं, दोनों भी नहीं ऑनलाइन कर किया तो सकते। सिक्योरिटी नहीं रहेगी, ऑफलाइन किया तो सिक्योरिटी होगी। ऑनलाइन किया तो सिक्योरिटी खाली होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा। देखो, जब हम यूज करेंगे ना, उसके बाद में ये सोचना है कि सिस्टम जो है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट हो, क्विज हो, वीडियो हो, पीपीटी वगैरह जो हो ना, वो सब कुछ ऑनलाइन किया तो चलेगा। स्टूडेंट वहां से उसका एक्सेस लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो डेटा है वो लीक होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग लीक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लेक्चर जो है ना, किसको भी सुनने में क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीटी कोई भी देखता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर देख लो ऐसा कि हमारा जो है ना, वो कैंपस में भी और उसके घर में भी चलेगा। अभी अभी मैंने देखा एक बार कि जो क्लासेस रन हो रहे हैं ना, जो लातूर से और नांदेड़ से वगैरह क्लासेस रन होते हैं, उनका जो ऐप है उसमें वो अपलोड करते हैं और वो जो स्टूडेंट है घर में बैठ के भी देखता है। तो फिर इतना ही सोचो आप कि एलएमएस जो है, जो भी हम टीचिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसको घर में देखने के लिए यदि सुटेबल हो जाता है तो वो करेंगे, और बाकी जो हमारा जो रिकॉर्ड है वो सब कुछ हम ऑफलाइन रखेंगे। ठीक है, जो भी और एलएमएस रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो भी डेटा है वो सब कुछ सिक्योर रहेगा। आधार नंबर जो है ना, आधार नंबर भी हमारा सिक्योर रहेगा, तो दिखेगा नहीं किसी को और उसका मिसयूज नहीं होगा। और वो यूनिक आईडी इसलिए लिया है ताकि तुम्हारा हेडशिप का कोई दूसरा लॉगिन करके कुछ गलत काम इस पे नहीं कर बैठे, इसलिए यूनिक आईडी वो लेना ही है और वो कंपलसरी है। लेकिन उसका मिसयूज नहीं हो रहा है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। इसकी और गारंटी क्या है, वो कोई कॉन्फिडेंशियल रहेगा? आधार नंबर कॉन्फिडेंशियल रहेगा, इसकी गारंटी क्या है? और आधार नंबर लीक भी हो जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। और आधार सर नंबर मेरा, और सर आधार नंबर जो है ना सिर्फ मेरा कैंपस में ही है, बाहर नहीं है। और आधार नंबर यदि मेरा गूगल पे आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या फर्क पड़ता है उससे? ईमेल करने से क्या दिक्कत है आपको? ईमेल जो है, ईमेल नहीं, लॉगिन आईडी तो हमारा अलग ही है। जो हम अभी एचओडी का जो आप लॉगिन कर रहे हैं, फैकल्टी जो लॉगिन कर रहे हैं ना, वो उनके हिसाब से वो कर रहे हैं। उनको लॉगिन आईडी जनरेट करना है। एक बार मैंने लॉगिन आईडी और उसका जो भी पासवर्ड दिया, बाद में वो जो इंटर हो जाता है ना, वो सब कुछ बदल देना उनके हाथ में ही है। वो सब कॉन्फिडेंशियल है। आप सब कुछ बदल सकते हो, एडिट कर सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रोफाइल में आप भरोगे ना, वो प्रोफाइल स्टूडेंट को दिखेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, और जो भी कुछ डेटा उस पे प्रोफाइल पे आएगा वो एक्सपोज करने के लिए खाली वो स्टूडेंट के लिए उसको मालूम ही होना चाहिए कि आपका फोन नंबर क्या है और आपका ईमेल आईडी क्या है। कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ बोलना है तो देख लो। सिंगल सर, तुम्हाला काय मॅनेजमेंट मध्ये वगैरे काय सुचवायचं असेल तर बघा। हा बोला सुद्धा सर। प्रश्न असा आहे की आपल्या अनुदानी अनुदानाचे दोन विभाग आहेत. आवाज येत नाही। आपले अनुदानी विनाअनुदानीचे दोन विभाग आहेत. साउंड कुछ भी नहीं है सर. अनुदान विभागामध्ये तुमचा आवाज सिलेंडर काहीच येत नाही। हा सर, आवाज येतोय का? आवाज येतोय पण बहुतेक तुम्हाला नेट स्टॅबिलिटी नसल्यामुळे मी इथं काय ऐकायला येईना। प्रश्न असा आहे, आपल्याकडं विनाअनुदानित विभागामध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे. त्या दोन विभागासाठी आपल्याला अकाउंट काढायची का एका अकाउंटचे पैसे भरता येतात? कारण गेल्या वर्षी प्रॉब्लेम निर्माण झाला होता. अकाउंट एक चालतं का वेगवेगळं चालतं?
शिंदे सर आपको साउंड नहीं आ रहा मुझे कुछ भी. अनुदान आणि विनानुदानित विद्यार्थी, अनुदानित आणि विनानुदानित दोन तुकडे आहेत. हाँ हाँ. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की एकच अकाउंट चालतं का? ग्रांटेबल नॉन ग्रांटेबल असं दोन नको, एकच पाहिजे. हा. हा सर. ती रिक्वायरमेंट आपल्या क्लरिकल स्टाफची नाही ना. त्यांनी दोन्ही अकाउंट जे आहेत ना ते वेगवेगळे दिले. आणि तेवढंच नाही, बीएससी भाग 1 मध्ये जे नॉन ग्रांटेबल विद्यार्थी आहेत ते सुद्धा ते नॉन ग्रांट अकाउंट वरती जावं अशी त्यांची इच्छा आहे. आणि उलट हे तर फारच सोयीस्कर होतंय की एकाच अकाउंट वरती सगळे जर पैसे कलेक्ट झाले तर सॉफ्टवेअर मध्ये किंवा इथं काही अडचण वगैरे नाही, पण त्यांच्या रिक्वायरमेंट नुसार क्लरिकलच्या किंवा अकाउंट विभागाच्या रिक्वायरमेंट नुसार ते केलेले आहे. नदाफ, येस सर. ऑनलाईन पेमेंटचं जे गेटवे आहे ते कोणतं गेटवे? रेजर पे सर. मग ते गुगल किंवा फोन पे याच्यावरून करू शकतात का मला? करू शकता, बट डायरेक्टली ते सॉफ्टवेअर थ्रू होणार नाही. गूगल जो गूगल पे आणि फोन पे जो ये उसका जो एपीआई है वो एपीआई एग्जिस्ट नहीं है. वो डायरेक्टली फोन पे या गूगल पे स्कैन करके कर सकते हैं. ठीक है. अगर ऐसा कुछ डायरेक्टली क्वालिफिकेशन करना है तो आरटीजीएस और कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा. वो करना है तो कर सकते हैं. नाही, आता अडचण आहे की मुलांना किती आपण ऑनलाईन केलं तरी पेमेंटसाठी कॅम्पसमध्ये यावंच लागतंय. तर ते त्यांना जे इझी मोड आहे, आता ते हॅबिच्युअल आहेत, फोन पे आहे, गुगल पे, तर त्याच्यावर नाही का आपल्याला उपयोग करून घेता येणार? फोन पे आणि गुगल पे त्यात एक्झिस्ट आहे. तुम्ही 2 मिनिट अजून तो मी इथं स्क्रीन प्रेझेंट करतो. मी अजूनही तुम्हाला डेमो दाखवतो. ते बघितल्यानंतर तुम्ही सांगा की ह्यात काय तुम्हाला अजून चेंजेस पाहिजे. की आता स्क्रीन शेअर करतो, प्लीज जॉईन करा. गुगल पे आणि फोन पे साठी. ऐका मी अगोदर बोलून घेतो. हा. इफ यू फील इट इज अ कन्व्हिनियंट ऑन द सेक ऑफ मॅनेजमेंट, क्लिनिकल स्टाफ, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी, तर दुसरं की आपण या मधून व्हिडिओ लेक्चर्स डायरेक्ट कंडक्ट करू शकतो का सेशन वाईज? नाही, डायरेक्टली नाही सर. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही लेक्चरचे जे प्री कॉपी आहे, व्हिडिओ कॉपी आहे रेकॉर्ड केलेले, ते तुम्ही अपलोड करू शकता. म्हणजे नोट्स, डॉक्युमेंट्स, व्हिडिओ लेक्चर्स आपण तुम्ही upload करू शकतो. LMS मध्ये अपलोड करू शकता. पण मला सिलेक्टिव्ह मुलांना द्यायचे असतील तर? सिलेक्टिव्ह मुलं असेल तर तुम्ही तसं सांगा मला, तुमचे रिक्वायरमेंट आहे. तुमच्या तसं रिक्वायरमेंट असेल तर तुम्ही फक्त ऑल स्टुडंट किंवा पर्टिक्युलर स्टुडंटला एवढं आसान करू शकता तुम्ही तिथे, की बाकी स्टुडंटला ते सॉफ्टवेअर ते व्हिडिओ किंवा ते कंटेंट आहे ते दिसणार नाही. फक्त जे सिलेक्टेड स्टुडंट आहे ना तेवढं दिसणार. तसं रिक्वायरमेंट असेल म्हणजे तर होऊ शकतं. आमच्या कामामध्ये की जे पुअर लर्नर आहेत, ऍडव्हान्स लर्नर आहेत, अवरेज लर्नर आहेत, त्यांचं आम्ही कॅटेगरायझेशन करतो आणि त्यांना वेगळं वेगळं रिडिंग मटेरियल द्यावं लागतं आम्हाला. तर ते इथून शक्य आहे का? तसंच त्यांना असाइनमेंट्स आम्ही देऊ शकतो का? आणि दिलेल्या असाइनमेंट्स च्या वर्कआउट होतात का? सध्या तर नाही सर. जे तसं रिक्वायरमेंट असेल तर तुम्ही करू शकता, तुम्हाला मिळून जाईल. दुसरं, एक्झामिनेशन जर मला कंडक्ट करायचे असेल युनिट वाईज, सब्जेक्ट वाईज, टॉपिक वाईज, तर मी करू शकतो का इथून? तुम्ही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन पाहिजे असेल तर तुम्हाला त्यात करू शकता तुम्ही. म्हणजे ऑनलाईन तुम्ही एक्झाम घेऊ शकता मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सारखं. नाही, मिक्स, म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह असतील, शॉर्ट आन्सर असतील. नाही, MIS मध्ये ते फॅसिलिटी येणार नाही. ते एक्झामचे मोड वेगळंच आहे, हे मोड वेगळंच आहे. तुम्ही फक्त ठीक तिथं आहे. फीडबॅक सारखा तुम्ही यूज करू शकता हे जर. आपण जो वर्कलोड आपण डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत त्याचा अपडेट घेण्याची व्यवस्था आहे का? काय अपडेट? मॉनिटरिंग, की हाऊ मच इट इज गेट कम्प्लिटेड, हाऊ मच रिमेनिंग. नाही, ह्याची स्टेटस ह्यात नाही सर. तुम्ही प्रॉपर मला डॉक्युमेंटेशन दिलं तर तुम्हाला मिळून जाईल. बरं, ठीक आहे. हेड ऍडमिन कडून को फॅकल्टीला जर काही काम असाइन केलं असेल
तर त्याचा कंप्लायन्स घेता येतो का? हा, हेल्प डेस्क म्हणून आपण तिथे एक मेनू देणार आहे हेल्प डेस्क म्हणून. त्यात तुम्ही हर जे फॅकल्टी आहे, जे क्लर्क आहे किंवा जे हेड आहे, तुम्ही त्याला काम आसान करून घेऊ शकता आणि त्याला ट्रेस करू शकता की तुम्हाला नेक्स्ट प्रोजेक्टमध्ये ते मिळून जाईल. आता सध्या एक्झिस्टिंग मध्ये नाही का ते? रजिस्टरमध्ये नाही. ठीक आहे. जे आता दोघा तिघा आमच्या सहकार्याने व्यक्त केलं की अटेंडन्स, तर ते अटेंडन्स मॅनेजमेंट हे कॉम्पॅटिबल नाही का होऊ शकणार गुगल बरोबर, झूम बरोबर, जिओ बरोबर किंवा टीचमेंट किंवा जे काय असेल वॉट एव्हर टीचिंग प्लॅटफॉर्म? गुगल बरोबर म्हणजे कसं? गुगल मीटला गुगल मीट आहे, झूम मीट आहे, हम्म, जिओ मीट आहे, टीच मीट आहे, याच्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म आम्ही घेतो आणि त्यांच्यात बाय डिफॉल्ट सगळे अटेंडन्स मिळतात. जॉईनिंग टाइम, किती वेळा तो लॉग आउट लॉग इन झाला. हम्म. तर बट त्या त्याच्यामध्ये कॉम्पिटेबिलिटी याला येऊ शकते का? येऊ शकता, बट त्याच्यामध्ये कसं आहे माहिती आहे का, की आपण तिथं युनिक नाही, आपल्याकडे काही नाही. ठीक आहे, युनिक आपल्याकडे काहीतरी पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये आहे ते आहे VPRN म्हणून. तिथं काहीतरी कंटेंट असेल तर आपण डायरेक्टली ते जे एक्सेल शीट आहे तुम्ही जे जनरेट करतात गुगल मीट किंवा झूम मीटवरनं, ते डायरेक्टली तुम्ही डाउनलोड करून इथं सॉफ्टवेअरमध्ये अपलोड केलं ना, की तुमचे जे प्रेझेंट ऑप्शन आहे ते लागून जात होतं. बट प्रॉब्लेम काय आहे, फक्त तिथं नाव येते की नाव पण तिथे चेंज करायला ऑप्शन पण नाही, डिस्प्ले नाव काय पाहिजे म्हणून. तिथं प्रॉब्लेम येते. आम्हाला सोयीचं तर नावच आहे, कारण ते VPRN नंबर कोण पण लक्षात युनिक नाही काहीतरी ठेवणार. पाहिजे. एका नावाचे स्टुडंट 2-3 होऊ शकतात सर. काहीतरी एक युनिक पाहिजे. पण ते कॉम्पॅटिबल झालं तर आम्हाला सर्व अर्थाने सोयीच होईल. पण युनिक एक काहीतरी पाहिजे मला, मग तर होईल. नावानंतर होणार नाही. मुलांना कॉमन मेसेज द्यायचा असेल तर देता येऊ शकत असेल इथून. हा, तुम्ही नोटीस यूज करू शकता. अच्छा, आणि तसंच फीडबॅकच्या बाबतीत पण? हा, फीडबॅक आणि तसंच. याच्यामध्ये काही प्री लोडेड मॉड्यूल्स वगैरे येतात का दुसरे? म्हणजे कसं? प्री लोडेड जे पूर्वीचे मुलांना आणि शिक्षकांना उपयोगाचे आहेत असे काही मॉड्यूल्स आहेत का याच्यासोबत दुसरे? जे याच्याशिवाय तुमच्याकडे मटेरियल असेल तर तुम्ही इथं अपलोड करू शकता युजिंग LMS माध्यम. बरं. क्वेश्चन पेपर काय ठीक आहे. असेल तर तुम्ही तिथं अपलोड करू शकता. क्वेश्चन पेपर अपलोड करू शकतो. पण तुम्ही आता म्हणला की डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप एक्झामिनेशन घेता येत नाही, ऑब्जेक्टिव्ह टाईप मल्टिपल चॉईस घेता येते. हम्म. पण मल्टिपल चॉईस मध्ये जर नोटेशन असतील मॅथमॅटिकल, हम्म. तर ते कसे तुम्ही ह्याच्यामध्ये अपलोड करता येईल? त्याचं आता नोटीस गुगल करून घेऊया. नाही, त्याचं नोटीस गुगल करून. फॉर्म हा सर, गुगल फॉर्म मध्ये आम्हाला आता म्हणजे गुगल फॉर्म मध्ये आपण जे काही भरतो, आता ते जर म्हणजे मॅथमॅटिकल नोटेशन असतील तर ते तिथे इन्क्लूड करता येत नाही. ते कॉपी पेस्ट करून त्या पेंट मध्ये जाऊन तिथं ते क्रॉप करून ते इकडे कॉपी पेस्ट करूनच ती टेस्ट घ्यायला लागते. मॅथमॅटिकल नोटेशन्स येत नाहीत. मग आता जर ऑनलाईन टेस्ट घ्यायची म्हटलं किंवा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनची मल्टिपल चॉईस आन्सर मल्टिपल चॉईसची जर एक्झाम घ्यायची म्हटलं तर ती नोटेशन्स येत नाहीत. मग ह्याच्यामध्ये काय अशी सिस्टीम असणार आहे का की मी जे आता एखादा प्रश्न मी टाईप केला तर ते मॅथमॅटिकल नोटेशन तिथे यावे? येईल ना सर. ते मॅथमॅटिकल नोटेशनचं बघा. येस आपल्याला रिझल्ट पण अनालिसिस करता येईल यावरून? सर, रिझल्ट अनालिसिस करता येईल का यावरून? कुठला रिझल्ट म्हणता तुम्ही? घेतलेल्या एक्झामचा. हा, युनिव्हर्सिटी करू शकता. एक्झामिनेशनचे. येस, करू शकता. आणि मुलांचं रिपोर्ट कार्ड पण जनरेट करता येऊ शकेल? रिपोर्ट कार्ड नाही सर. ठीक आहे. ते आपण ऍप जे म्हटला ते ऍप सर्वांच्यासाठी एक असणार का प्रत्येक युजरचं मॉडेल वेगळं असणार? म्हणजे ऍडमिनचं वेगळं असणार की प्राचार्यांचं वेगळं, प्राध्यापकांचं वेगळं, स्टुडंट आणि पॅरेंट्स यांचं वेगळं असणार का? डिपेंड्स अपॉन लॉग इन ID सर. तुम्ही लॉग इन ID सिलेक्ट केले ना, त्याच्यावर ते डिपेंड करते की कुठला मॉडेल आहे. ते बाय डिफॉल्टली रिडायरेक्ट करते ते मॉडेलला. जर स्टुडंटच्या लॉग इन ID पासवर्ड असेल तर डायरेक्टली स्टुडंटला जाते. जर फॅकल्टी असेल तर फॅकल्टीला जाते. जर दुसरा कुठला असेल तर त्याचे ते अनालिसिस करून ऑटोमॅटिकली जाते की आपल्याला सिलेक्ट करायची गरज नाही.
अच्छा, आणि हे आपल्या कॉलेजच्या वेबसाईटवरतीच तुम्ही याला टॅब देणार का? येस. सजेशन बॉक्स वगैरे सगळं असू शकेल त्यात, म्हणजे समजा पुढे आम्हाला काय अडचण वाटली कॉलेजला तर वेबसाईट म्हणजे जे लाईव्ह आहे त्याच्यासाठी नाही. मग ह्याचे एक आय पी ॲड्रेस असा नसणार सर्व्हरला. ते आय पी ॲड्रेस आपण गुगल क्रोम किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी ब्राउझरमध्ये आपण टाईप करून एंटर केले ना, मग आपल्याला ते सॉफ्टवेअर मिळेल यूज करायला. पण त्याला असं काही कॅची वर्ड नाही का, कीवर्ड काय नाही का? कारण आयपी ऍड्रेस लक्षात राहीलच, ठेवा आम्ही लक्षात, पण नाही समजा राहिला तर हा, तुम्ही त्याचे शॉर्टकट बनवून ह्याच्यावर ठेवू शकता तुम्ही डेस्कटॉपवर. त्याचा डबल नाही, क्लिक पण तसं केल्यानंतर सॉफ्टवेअर ओपन केल्यासारखं करू शकता तुम्ही. ते कीवर्ड न गुगल मधून सर्च नाही होत काय? गुगलमध्ये सर्च होत ना, ते लाईव्ह नाही तर. बरं बरं, ठीक आहे. म्हणजे ते शेवटपर्यंत ऑफलाईन ना? जर तुम्ही हा जो आपलं हे जे सिस्टम आहे तुम्ही ऑनलाईन केलं तर गुगलमध्ये होऊन जाईल. ते बरं, ऑफलाईन असेल तर होत नाही. ठीक. आणि याचा डॅशबोर्ड पण मिळणार प्रत्येक ऍपला? डॅशबोर्ड, हा, हा डॅशबोर्ड तर ऑलरेडी आहे. ठीक. मानवसे सर घ्या. अजून कोणाला काय शंका वगैरे काय असतील तर विचारा. शिंदे सर आहेत आपल्याला इथं, अशोक शिंदे सर मॅनेजमेंट मध्ये. त्यांना काय बोलायचं असेल किंवा ह्याच्यावरती काही बोलायचं असेल तर ते पण बोलू शकतात. हॅलो, किंवा आवाज येतोय मनोज सर? माझा आवाज येतोय? येस सर, हा, येस. येतोय सर, येतोय सर. हा, आता मला जेवढं ह्या सॉफ्टवेअर विषयी समजलं का नाही सर, म्हणजे हे आपण जे मॉड्यूल सगळे जे 7-8 मॉड्यूल्स आपण सिलेक्ट केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये आता बऱ्याचशा शंका घाडगे सरांनी, सूर्यवंशी सरांनी ज्या विचारल्या, त्याच्यामध्ये मला काय वाटतं की ज्या आपण प्रेझेंटी विद्यार्थ्यांची प्रेझेंटी ह्या ऍपवरून आपण जर घेत बसलो तर 70-80 विद्यार्थी किंवा विद्यार्थी संख्या मोठी असू शकते. तर ह्याच्यामध्ये आपण एक सिंगल स्क्रीनशॉट घेऊन किंवा ऑटोमॅटिकली ते काही करता येते का, किंवा तुम्ही त्यासाठी नदाब साहेब युनिक असं काहीतरी मागितलं तर विद्यार्थ्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला युनिक त्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर जर आपण डिझाईन केला आणि तो तुम्हाला प्रोव्हाइड केला तर ते आपण एक करू शकतो. किंवा आता मला काय वाटतं की आपण हे मॉड्यूल जसं हे जे ऍप आहे जसं आपण वापरत जाऊ, तर जसं आपण हे वापरत जाऊ, आता आपण जर काय बोलत याच्याविषयी बसलो तर आपल्याला पुढच्या येणाऱ्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या आम्हाला तुम्ही कोपअप आमच्या बरोबर करत चाला, की जेणेकरून आम्ही त्याच्याबद्दल बरोबर ऍडजस्ट होऊ आणि विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये हे विद्यार्थ्याला अडॉप्टेबल असलं पाहिजे. आता लाईव्ह लेक्चर ह्यावरून व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे मला एखादं जर ह्या ॲपमधून एखादं लेक्चर घ्यायचं आहे मला, एखादं फिजिक्सचं लेक्चर असेल किंवा एखादं कुठल्याही विषयाचं लेक्चर असेल तर ते त्याच्यावरून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. प्रेझेंटीचा प्रश्न असेल किंवा असा काही लेक्चरचा प्रश्न असेल, विद्यार्थ्याभिमुख किंवा आपल्याला वापरायला सोपं कसं होईल हे आपण वापरत जाऊ तसंच कळेल आणि आपण देऊ त्या सजेशन त्यांना, तसं आपण त्यांच्याकडून शब्द घेऊ आणि ते वापरत वापरत जशा अडचणी येतील, आता सूर्यवंशी सरांनी ज्या सांगितल्या 1-2-3 अडचणी त्यातल्या महत्वाच्या वाटल्या मला, तर त्या अडचणी आपण यांच्याकडून सोडवून घेऊ आणि त्या पद्धतीने आपण पुढे जाऊ, तर ते आपल्याला जास्त उपयुक्त होईल आणि आपल्याला सहज सोपं वापरता येईल, जास्तीत जास्त अडचणी आपल्या सुटतील. ऑब्विसली सर, हे जे मॉडेल आहे आतापर्यंत मी तुम्हाला प्रेझेंट केलेलं आहे, हे बिलकुल बी बेसिक मॉडेल आहे. साहेब, अजून एक माझा मुद्दा विसरलो मी, सांगतो की आता सूर्यवंशी सरांनी एक महत्वाचा मुद्दा सांगितला की वेगळ्या भाषेत सांगितलं, मी वेगळ्या भाषेत सांगतो. मला काही फॉलोअप घ्यायचा असेल खाली, समजा मला भानवशी सरांच्या डिपार्टमेंटला काय विचारायचं आहे किंवा मला कोळवले सरांना काय बोलायचं आहे किंवा मला ह्या बाबतीमध्ये बोलायचं, तर हा फॉलोअप हेडला खाली इझी झाला पाहिजे. माझ्या समजा बॉटनीचा पेपर 3rdचा सिलेबस कुठंपर्यंत आलाय ते त्यांना तिथं नोट झालं पाहिजे की हे कुठंपर्यंत आलंय. माझा 15 नंबरचा पेपर आहे, टीवायचा अमका हा पेपर आहे, हा कुठंपर्यंत आलाय, हे सगळं मॉनिटरिंग प्रत्येक एंटिटीला किंवा प्रत्येक याच्यामधून ते सोपं झालं पाहिजे असं मला वाटतं. पाहिजे असेल तर तिथं चॅट बॉक्स म्हणून एक आपण फीचर ॲड करू शकता सर. जसं आपण चॅट करतात व्हॉट्सअप किंवा फेसबुकला, की तो पद्धतीनं आपण चॅट बॉक्स जरी ॲड केले की तिथं आपण डायरेक्टली इंट्रॅक्शन करू शकता. तुम्ही इनडायरेक्ट पण इंट्रॅक्शन करू शकता आणि जे तुम्ही सेंड केलेले मेसेजेस आहेत, जे सेंड केलं तुम्ही चॅट आहे, तर तुम्ही परमनंटली सेव्ह करू शकता आणि ट्रेस करू शकता तुम्ही कधी सेंड केलेले, आता रिझल्ट काय आहे, की त्याची कंप्लीट आहे की नाही टास्क, कसा काय तुम्ही तिथं मॉनिटर करू शकता. ज्या वेळेला विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये येईल
त्यावेळेला हे सगळे ऍक्सेस वायफाय मधनच होणार आहे. तेवढी फॅसिलिटी मुलांना द्यावी लागणार आहे. नाही सध्या तरी लॅन थ्रू एका चालू वेळेला सध्या नाही, तरी नाही, लॅन आता सध्या ठीक आहे. समजा विद्यार्थी आला कॅम्पसमध्ये, ऑफलाईन सुरू झालं आणि मुलांना जर कॉलेजमध्ये जे ते बघायला झालं तर एवढे 1,500 विद्यार्थ्यांनी जर त्यातल्या 200 विद्यार्थ्यांनी जर ऍट अ टाइम लॉग इन केलं तर ते सगळ्यांना सुटेबल होणार आहे का? येस सर होणार. येस सर होणार. तेवढी कारण फॅसिलिटी कॉलेजला द्यावी लागणार आहे. कॉलेज ऑलरेडी फॅसिलिटी दिलेलं सर, सर्व्हर घेतलेलं आहे की ते सर्व्हर घेतलेलं आहे, पण वायफायचं जे काय हे आहे त्याची कॅपॅसिटी वाढवावं लागणार आहे. आता सध्या वायफाय कनेक्ट होत नाही कॉलेज, जेणेकरून आता सध्या कॉलेजमध्ये वायफाय कनेक्ट होत नाही. नाही सर ते फॅसिलिटी द्यावं लागेल ना. ऍडव्हान्स करायचं असेल तर मी काहीतरी अडॅप्ट करावं लागेल ना. होय की, मी तेच म्हणतोय, मग ह्या सगळ्याचा विचार करावा लागणार आहे. या सगळ्या फॅसिलिटी देताना बाकीच्याही काही गोष्टीचा विचार करावा लागणार आहे. कारण आपल्याला ऍप द्यायचे मिनिंग एवढाच आहे की सगळ्या स्टुडंटला कॉम्प्युटर प्रोव्हाइड करू शकत नाही. हो, आपण थोडक्यात वायफाय तर देऊया. हा, ते इझी होईल स्टुडंट कॉलेजला की प्रत्येक स्टुडंटला आपण लॅन थ्रू कॉम्प्युटर देत असेल तर प्रत्येक स्टुडंटला अलोकेशन होत पण नाही, ते पॉसिबल नाही. की नाही. मोबाईल तर सगळ्याकडे आहे. हो, तर मोबाईलमध्ये तरी आपण कॅम्पसमध्ये जर वायफाय प्रोव्हाइड करून दिले की मोबाईलमध्ये सगळ्यांना तरी 75% तर स्टुडंट कव्हर होईल ना. एवढे कव्हर झालेच पाहिजे. हा 50% पण त्याचा होणार काय- नाही कॉम्प्युटर थ्रू. ह्या ऍपचा काहीच उपयोग होणार नाही. ऍप आपण तयार करतोय, हे जर स्टुडंटना सुटेबल नसेल तर त्या ऍपचा काय फायदा? त्याच्यासाठी गाडगे सर आपल्याला वायफायची जी रेंज आहे ती आपल्याला ती इन्क्रीज वाढवावी करावं लागणार आहे. त्याची वाढवावं लागेल. आणि तेच मी ते म्हणतो, वाढवायला लागणार आहे. ते वाढवली तरच ते आपलं हा. सगळं डेटा ऍक्सेस करणार आहे विद्यार्थी. हो. Otherwise तो डेटा ऍक्सेस करणार. तेच मी म्हणतो. त्यासाठी आपल्याला वायफायचे सध्या वायफाय कनेक्ट होत नॉर्मल वायफाय आहे. नॉर्मल जे आपण वायफाय किती देतोय ते रेंज महत्त्वाचं. आता भानुवाशी सर, आता हा, आपण बोला. हा. आता आपण असंच गृहीत धरलेलं आहे की प्रत्येक मुलगा स्मार्टफोन घेऊनच कॅम्पसमध्ये येणार आहे, असं गृहीतच धरले ना आपण. आता प्रत्येक मुलगा हा स्मार्टफोन घेऊनच येणार आहे आणि ते गृहीत धरूनच हे सगळं इम्प्लिमेंटेशन चालू आहे. असं म्हणजे ह्या सगळ्या हे जे मॉडेल आपण बघतोय ठीक आहे. मग त्याच्यासाठी मला काय सुचवायचं आहे हा, बरोबर. की मुलांच्यासाठी जर याच्यावरती पोलिंग तयार केलं हा. आणि यांचं 15 सेकंदाचं काम आहे मुलांचं की बॉटनीच्या स्टॅट मॅथ्स फिजिक्स केमिस्ट्रीच्या लेक्चरला फक्त 15 सेकंदाचं पोलिंग केलं प्रेझेंट तर सगळ्यांची प्रेझेंटी त्या सेकंदाला जेव्हा ते टीचर हा. थ्रूआउट लेक्चर किंवा ज्या पॉइंटला त्यांना सांगावं असं वाटतं तेव्हा सांगितलं तर पोल झाला तर सगळ्यांचा पोल रजिस्टर झाला, याचा अर्थ दे आर फिजिकली प्रेझेंट इन द क्लास ऍट दॅट टाइम. तर मग हे प्रेझेंटीला नाही का लॉग इन कॉम्पॅटेबल करता येणार? मे बी सर ते एखाद्या वेळेस त्यानं जर लॉग इन तिकडे ऑनलाईन केलं तर विद्यार्थी इन प्रेझेंट करू शकेल असं मला वाटतं. बघा कसं इन प्रेझेन्स असेल तर पोल केलं तर अहो तुम्ही कॅम्पस मध्ये रिस्ट्रिक्शन घातलंय ना. तुम्ही कॅम्पस मध्ये रिस्ट्रिक्शन घातलंय, परत विषांतर व्हायला नको. वर्गात बसलेल्या मुलाला त्या पॉइंटला सांगितलं मी आणि समजा त्यानं 4 तासानं केलं तर तो कोण गृहीत धरतो? मी 11:35 ला मुलांचा पोल मागितला होता प्रेझेंट, जेवढ्याचा मला तो प्रेझेंट नाही मिळाला तो अपसेंट राहणार. तर हे काय हरकत आहे तुम्हाला कॉम्पॅटेबल करायला? इमाम, सब कुछ नोट करके ले लो. ये हमारा बेसिक मॉडल है, इसमें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. डन सर, चलेगा. नहीं आपको मैं एक बात बताऊं कि अभी जो डिस्कशन चल रहा, एडवांस में जो डिस्कशन चल रहा, मैंने सब कुछ सुन लिया कि ये जो बोल रहे थे ना सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर थ्रू नहीं है. इसके लिए हार्डवेयर्स हैं, ठीक है. तो वो हार्डवेयर्स कॉलेज ने परचेस करके लेना पड़ेगा, ठीक है. सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सिर्फ डेटा मेंटेन करेगा. बट जो भी आप अभी आप थिंकिंग कर रहे हो, मतलब आप जो अभी बोल रहे हो, ये सभी इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट जो मॉड्यूल्स आते हैं, मतलब जो हार्डवेयर्स आते हैं,
आइडियल हाँ मॉडल वो हाँ, आइडियल मॉडल। जो हार्डवेयर आते हैं, अगर आपके पास वो मॉडल्स रेडी थे, अगर आपके पास जो हार्डवेयर रेडी थे, तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। आप आधार के हिसाब से आधार नंबर सिर्फ आप बोट रखने के बाद आप पूरा से पूरा डेटा फेच कर सकते हो। ऐसा डिवाइसेस पे, अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइसेस थे, आप खरीद करके लाए, तो सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं करेगा, डायरेक्ट डेटा फेच करके लेगा और इजी हो जाएगा। आप जितने भी एडवांस मॉडल आएंगे, जितने भी आप एडवांस बोलेंगे ना, तो उतना उसके हिसाब से हम हार्डवेयर लेना पड़ेगा, तो तभी सॉफ्टवेयर आपके साथ इंटरेक्शन करेगा। ये सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, सजेशन तो एकदम बिल्कुल बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। सजेशन सब कुछ नोट करके ले लो, यस। इसमें डिस्कशन करेंगे हम, हम्म। और जो भी कुछ ऐड करने के लिए आता है वो सब कुछ ऐड करेंगे। डन डन। इसमें मॉडल हमारे कितने हैं? स्टार्ट हो जाता है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट से बाद एडमिन में से स्टार्ट होता प्रिंसिपल, है, एडमिन से स्टार्ट हाँ होता है, एडमिन से स्टार्ट होता है। एडमिन 9 स्टार्ट होता मॉडल्स है। है, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल तक। बाद में एडमिन से फिर से कनेक्ट होता है एचओडी से, एचओडी से कनेक्ट होता है, एचओडी से फैकल्टी की तरफ, और फैकल्टी तरफ से स्टूडेंट का कनेक्ट होता है। हाँ, तो फिर वो स्टूडेंट का जो मॉडल है ना, हम्म। वो मैक्सिमम पॉसिबल जितना आइडियल आपको करने के लिए आता है इस बरस में करने का प्रयास करो। बाकी मॉडल की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ मॉडल जो है वो ऑफलाइन ही चलने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? मैनेजमेंट से क्लर्क और अकाउंट तक, ये सब कुछ ऑफलाइन चलने वाले। और स्टूडेंट का जो एलएमएस और बाकी सब कुछ है ना, उसको ऑनलाइन करने के बारे में जरा सोचो कि हम यदि सपोज एक आड़गे सर जो बोल रहे हैं ना कि वाईफाई देना हमें अफोर्डेबल होगा कि नहीं होगा, इसके ऑप्शन में हम ऐसा करते हैं कि उनका जो डेटा है ना वही यूज करेंगे, खाली हम ऑनलाइन करेंगे उसको। उनके जैसा डेटा चाहिए वो एक्सेस लेंगे। देख लो, सोच लो, अभी सोचने में बहुत सारा वक्त है, लेकिन बाकी जो भी कुछ मॉडल है, बेसिक मॉडल, ये तो पहले रन करेंगे, और जो भी कोई सजेशन सब कुछ नोट करके ले लो और इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। यस सर। चलो मानव से सर कंटिन्यू हाँ। करा। आता आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये डिजिटल रिपॉझिटरी सेल आणि ॲक्युरेसीच्या माध्यमातून ई कॅम्पस या विषयावरती एक वर्कशॉप अरेंज केलं. त्या वर्कशॉप मध्ये आयस्टर टेक्नॉलॉजी पुणे मिस्टर नादार यांनी खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी त्यांचे बी आभार मानतो. आणि या कार्यक्रमासाठी शिंदे सर, अशोकरावजी शिंदे सर, त्याच्यानंतर प्राचार्य श्री फुले सर आणि सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख, नॉन टीचिंग स्टाफ हा सगळा उपस्थित राहिला. त्याबद्दल मी सगळ्यांचं आभार मानून हा कार्यक्रम इथं संपला असं जाहीर करू. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू.